Hare Krishna. So, Prabhuji, is it? Is it okay? Okay, Hare Krishna. So, Hindi, English. English is fine. सबको English आती है, right? Okay, great. So, आज जो seminar है, it is quite different from, I guess, what we regularly take here, right? Regularly, Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu. These are general topics we discuss here in ISKCON. So आज जो है it is थोड़ा हटके है, but it is a very foundational topic. It's a very important topic. 500 साल से प्रभु जी भी बहुत एक interesting चीज़ बताए. मैं भी उस साइड में पहली बार सोचा. I thought for the first time that actually there was no need for Rupa Goswami or Sanatan Goswami to work on such a topic or to speak about its importance, because default सब तो मानते थे कि ये historical है, सच में हुआ है, it really happened. But आज के युग में this question is coming up a lot. So I think that's a very um, right perspective actually. That nowadays people are starting to question. तो जब question आता है तो जवाब भी देना जरूरी है, right? So like to hear from you. What's your first thought when you came to know about this seminar? क्या होने वाला है? क्या चीज़ है? Anyone like to share? Anyone like to share their thoughts? Yes. हाँ. Archaeological evidences. ठीक है. Anyone else like to share what topics you are expecting today? या okay, before we go further, क्या किसी ने ये चीज़ कुछ ऑनलाइन में कहीं पे देखा है या any things which you saw online about this? Yes, okay. कहाँ पे देखा इसको? Okay, perfect. Yes, आपने कहाँ देखा? आपने yes. Hmm. 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 Right. Okay. Anyone else like to share? Anyone else? What are you expecting today? Yes. Right. So what we are going to show today is I would say foundational, especially in this age we are living, because many times we have our family members, children, colleagues, or people whom we meet. They question कि क्या है तिलक लगा के बैठे हो, कंठी माला क्या कर रहे हो? It's all mythology. कितने लोग ने ये आर्गुमेंट सुना है अपने लाइफ में? Almost everyone, right? Especially in areas like this, which is IT area, corporate area. तो यहाँ पे तो practically everyone questions. झूठ है, कहानी है, कहाँ जाके फंस गए? कहाँ जाके फंस गए? क्या कर रहे हो? Right? So we need to substantiate the facts. ठीक है? जैसे when I was there in as a brahmachari in Sri Lanka, I was there for 4 years. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट हुआ. जैसे I met a Buddhist monk. So that Buddhist monk told me कि हमारा हिस्ट्री है महावंसा. महावंश उनके हिस्ट्री के बुक का नाम है महावंसा. तो जस्ट लाइक महावंसा आपका है महाभारत. समझ रहे? अवर्स इज महावंसा, योर्स इज महाभारत. तो मुझे वो बहुत बड़ा शौक था. मतलब आप मानते हो महाभारत को? रियली यू बिलीव दैट महाभारत इज हिस्टोरिकल? यस. उसने बोला यस एब्सोल्युटली, इसमें क्या डाउट है? तो मुझे ये बहुत बड़ा शौक था. क्यों?
इंडिया में जय भीम का नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है। जो बुद्धिस्ट है वो बोलता है कि अरे ये तो मिथोलॉजी है, हम ही सच्चे हैं, हम ये मूल निवासी, आर्य विद्रोही, आर्य बाहर से आए हैं, आर्यंस आर इन्वेडर्स, योर हिस्ट्री इज फेक, वी आर द रियल इंडियंस, हमारा हिस्ट्री सच है और हमने बुद्धिज्म अपनाया है। तो मुझे बहुत बड़ा शॉक था व्हेन अ बुद्धिस्ट टोल्ड मी दैट महाभारत इज हिस्टोरिकल। आई वाज लाइक वाओ, ऑसम। तो देन आई आस्क्ड हिम सम क्लूज, कहाँ कहाँ पे इसका डेटा अवेलेबल है, थोड़ा बता सकते हो? देन ही टोल्ड मी दैट it's available in the books called as Jatakas. Jatakas. There are birth stories of the Buddha. Jatakas. तो जातकास 500 से भी ज़्यादा जातकास है, तो मैंने वहाँ पे स्टडी किया और ट्रेशर मिलते गए। देन आई वेंट टू तमिल संगम लिटरेचर विच आर 2400 ईयर्स ओल्ड, वहाँ पे गया, वहाँ पे भी डेटा मिलते गए। देन आई वेंट टू इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन समझते हैं, शिलालेख जो दीवार पे, प्राचीन दीवार में पत्थर में वगैरह लिखा रहता है। दैट अगेन वाज अ बिग शॉक। सिक्कों के बारे में रिसर्च किया, अगेन आई फाउंड टन्स ऑफ एंशिएंट कॉइन्स, राइट। देन आर्कियोलॉजी, ऐसे it kept expanding and expanding and expanding, and finally we have, a book which came out, which I have brought here, some copies I have. So that's the basic introduction about this research. So if you want to follow me, I have my channel in social media. So अगर आप ये ऐसे videos देखना चाहते हैं, it's available. My channel name is Historica, HISTORIKA. So you can check it up after the seminar. So that's something which I do, and in YouTube I have more than 40 podcasts in several top YouTube channels. So my non-initiated name, legal name which they say, उसमें podcast बहुत सारे available है. So if you want to know more, और कोई पूछ रहा है mythology है, तो podcast आप share कर देना उनको, बोलो देखो ये podcast में सब explained है, तो जवाब मिल जाएगा उनको. And I'm going to Mumbai, and Mumbai I have several top YouTube channels के साथ भी podcast होने वाला है. Then I'm going back to Delhi. So there's a very short trip of 1 week. I came to Pune and Mumbai, and very fortunate that Prabhuji gave an opportunity to meet you all. And today we are going to see a very different perspective, a unique perspective of our history and our scriptures. Okay? So just we'll brush up some topics here before we start. So this is play नहीं हो रहा? Okay. Okay, thank you. So as you can see here, do you know what it is? किसको हिंदी, ओनली हिंदी आती है? हिंदी हिंदी इंग्लिश मिक्स करना है, ओके। इंग्लिश 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 तमिलनाडु में बोलते हैं, तमिल एंड इंग्लिश मिक्स करके बोलो, तो मैं बोलता हूँ तमिल और इंग्लिश मिक्स करना है। तंग्लिश चाहिए ना आपको? हाँ, तंग्लिश चाहिए हमें। तो यहाँ पे इंग्लिश। तो आपको समझ में आ रहा है क्या है? दुनिया का सबसे प्राचीन सिक्का है। यहाँ पे लिखा है, इंडो ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा है वासुदेव, एंड द पर्सन इज होल्डिंग अ चक्रा। उसके पास और एक सिक्का मिला है जिसमें समकर्षणा लिखा है इंडो ग्रीक स्क्रिप्ट में। फोटो लेने की जरूरत नहीं, बुक्स में है, सब कुछ है एविडेंस के साथ, डोंट वरी, ऑल ओरिजिनल फोटोज आर गिवन, राइट। सो दिस इज समकर्षणा एंड ही इज होल्डिंग अ हल एंड अ गदा। बलराम जी हल पकड़ते हैं, राइट, वी ऑल नो। सी स्टडी ऑफ फॉर्म्स में आइकोनोग्राफी बोलते हैं, द स्टडी ऑफ फॉर्म्स, मतलब रूपों को स्टडी करना। हिस्ट्री में हम बोलते हैं आइकोनोग्राफी, मतलब आइकॉन्स मतलब फॉर्म, रूपों को स्टडी करते हैं। तो आइकोनोग्राफी के हिसाब से दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो हल और गदा पकड़ते हैं, और कोई नहीं है, और जिनका नाम समकर्षण भी है। कौन है? बलराम। एंड दिस इज अनदर interesting evidence from outside India. This is an ancient wall carpet. दीवार में जो कारपेट लटकाते हैं ना, तो ये वॉल कारपेट है, भगवान कृष्ण के चाइल्डहुड पास टाइम्स इसमें पेंटेड है, करीब 2000 साल पुराने। और मिला कहाँ पे पता है आपको? दिस वाज फाउंड इन अ कंट्री विच टुडे वी कॉल इट एज चाइना। चाइना, राइट। एंड दिस इज एन एंशिएंट इंस्क्रिप्शन फाउंड अंडर वाटर इन द्वारका। ये सब मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूँ, जब मूवी के अंदर जाएंगे तो इंट्रीगिंग
माइंडसेट से जाएंगे. सो दिस इज द बुक महाभारत मिथ और हिस्ट्री. आई वुड रिक्वेस्ट अगर वहाँ से एक बुक मुझे आप थोड़ा बुक दे सकते हो वहाँ से. जस्ट ब्रिंग आउट वन बुक फ्रॉम देयर. Just pass it on. Yeah. So this is the book. We have some copies here. Mahabharat Myth or History. So इसमें it has more than 300 plus evidences of the Mahabharata. Also Krishna, because Krishna is participating in the Mahabharata. So Mahabharata is basically the history of the Bharat Vamsh and Bharat, right? So that's why it's called as Mahabharat, Greater Bharat. महाभारत का जो अपेंडिक्स है इट्स कॉल्ड एज हरिवंश पुराण. जो व्यास देव जी पूरा महाभारत लिखते हैं उनको एक इनकम्प्लीट सा फील होता है कि भाई मैंने पूरा भरतवंश किया, पांडव कौरव करता रहा. सो भगवान की लीलाएं भी डिस्क्राइब करना है बोल के उन्होंने हरिवंश पुराण को एडेंडम कर दिया, अपेंडिक्स कर दिया उसके साथ. और हरिवंश पुराण का आप देखिए, इट्स द वे इट इज रिटन इज मोर लाइक अ इतिहास. इट्स नॉट लाइक अ पुराण. नाम के लिए पुराण है हरिवंश पुराण, बट टेक्निकली स्पीकिंग इज मोर लाइक इतिहास, बिकॉज वो महाभारत के जॉनर में लिखा है, उसी माइंडसेट से लिखा हुआ है, इतिहास के माइंडसेट से. तो महाभारत एंड हरिवंश पुराण टुगेदर इट्स 100,000 या 1 लाख श्लोकस. 1 लाख श्लोकस. सो ये जो बुक है, दिस इज द फर्स्ट बुक एवर in not only in ISKCON but in the history of mankind which has all the evidences from multiple disciplines. चाहे वो इंस्क्रिप्शन हो, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो द्वारका के आर्कोलॉजिकल फाइंड्स हो, कुरुक्षेत्र में जो मिला हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एविडेंसेस मिले हैं. भगवान कृष्ण की लीलाओं का डिपिक्टेड है 4,000 साल पुराने. सो ऐसे अनेकों एविडेंसेस हैं जो पहली बार इस किताब में कंपाइल्ड है. सो ये किताब आज हम दिखाएंगे आपको. So I was formerly a software engineer, as I told you before, and I dedicated my life for 5 years. I gave for this purpose, and also I'm doing another. As a grahastha, I have other sources of income apart from my, selling books and all that. So I have my father is a leading businessman in Chennai, so that's one thing. It's a very brief background of my family and all that. So I am into Grahastha Ashram now with 2 children, and I'm settled in Delhi. So I have seen all lives as a youth coming to Krishna consciousness, then as a brahmachari for 4 to 5 years, and then now as a congregation as a Grahastha, and trying to do my best in preaching the historical validity of scriptures. So that's a very brief background. So why it all started, how it all started, because when we used to do youth preaching, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मिथोलॉजी है, काल्पनिक है, क्या प्रूफ है, व्हाट इज द प्रूफ, एविडेंस दिखाओ. रूप गोस्वामी के पीरियड में या 1000 साल पहले मध्वाचार्य के पीरियड में, रामानुजाचार्य के पीरियड में किसी ने सवाल पूछा नहीं होगा, उनके लिए रेलेवेंट नहीं था ये सवाल. ऑब्वियस है, हिस्टोरिकल है, इसमें क्या क्या संदेह है. बट आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरे सनातन धर्म के लिए जो मूल किताब है, जो बेस है, वो है भगवत गीता. भगवत गीता इज पार्ट ऑफ, पता है ना आपको, भगवत गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत. भीष्म पर्व चैप्टर 27 से शुरू होता है भगवत गीता. मतलब 27 से जो शुरू हो रहा है उसको हम भगवत गीता बोलते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में. तो भगवत गीता पार्ट ऑफ महाभारत. महाभारत इज वन ऑफ दी व्हाट बुक्स, इतिहास, राइट, इतिहास. अनदर इज रामायण. तो इतिहास शब्द का अर्थ है इतिहास, मतलब 10 सो हैपेंड. समझ रहे हैं मतलब. सो अगर आपको बोलना है महाभारत लेके आओ, उससे बेहतर आप बोल सकते हो 10 सो हैपेंड लेके आओ, मतलब ऐसे हुआ था, उस किताब को लेके आओ. तो बेसिकली द वे इट इज फ्रेम्ड, वो अपने को डिफाइन ही ऐसे कर रहे हैं कि हम जो है हम हिस्ट्री बता रहे हैं. वी आर नॉट टेलिंग सम स्टोरीज एंड ऑल दैट. ये फैक्चुअल हिस्ट्री है. बट the British who were there in India, they knew very well कि इंडिया का जो फाउंडेशन है, भारत का जो फाउंडेशन है, वो इतिहास है, और वो रामायण एंड महाभारत से कनेक्ट होता है. और रामायण महाभारत में धर्म युद्ध की बात चलती है. धर्म युद्ध, धर्म के लिए लड़ाई करना है, फाइट फॉर द धर्मा, विन फॉर द धर्मा, डिफीट द अधर्मीज, डिफीट द असुरास, डिफीट द राक्षसस एंड ऑल दैट. सो इसको मिथोलॉजी बनाना बहुत जरूरी था उनके लिए. क्यों इसको मिथोलॉजी बना दिए, तो उसके बाद हमारा कनेक्शन टूट जाएगा स्क्रिप्चर्स के साथ. बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए ये चीज़ करना. इसीलिए आप देखिए बहुत सारे ब्रिटिश स्कॉलर्स ने ये चीज़ काम किया. अरे ये तो मिथोलॉजी है, काल्पनिक है, झूठ है, ऑल दैट. अब देखिए कोर्ट भी कितना कितना
आउटरेजियसली दे रहे हैं कि हमारा जब जो है सब सही है, इसमें कुछ, बट योर्स इज मियर फेबल्स एंड फैंटेसीज, yours is mere fables and fantasies. So that was the kind of mindset they had when they were in India. एजुकेशन सिस्टम पे टैम्पर किया, हमारे जो कल्चरल कनेक्शंस है उसको तोड़ने की पूरी साजिश चली। और आज जो है, आज के बच्चे आप देखिए इंडियंस, उनको क्लू ही नहीं है कि वो कहाँ है, राइट? सो पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री एंड फिलोसफी दो फील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए। क्यों? उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर पास्ट में कुछ चीज़ हुआ है उसमें से हम लर्निंग्स ले सकते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों ने गलती बहुत सारे की, उनके बीच में यूनिटी नहीं था तो इन्वेडर्स अंदर पेनिट्रेट कर पाए, राइट? यूनिटी नहीं था। और एक जैसे जयचंद था फॉर एग्जांपल, ही हैड हिज ओन रीजंस व्हाई ही शुड नॉट सपोर्ट पृथ्वीराज चौहान, तो इन्वेडर्स को बेनिफिट मिला। तो हिस्ट्री बहुत बड़ा टीचर है, बहुत सिखाता है हमें। सो हिस्ट्री को हम एक लेसन की तरह ले सकते हैं कि व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। इट्स अ ग्रेट टीचर। तो बट यहाँ पे देखिए, दे न्यू वेरी वेल दैट इनके फाउंडेशन को तोड़ना है तो हमें हिस्ट्री पे अटैक करना है। तो मिथोलॉजी काल्पनिक है, झूठ है, कोई प्रूफ नहीं है, एंड सो ऑन। बट इंटरेस्टिंगली ये कहाँ से आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से, विच वी ब्रॉडली कॉल एज अ यूनाइटेड किंगडम, राइट? आप ऐसे चीज दिखाऊंगा आपको, आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे। यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ करता था? वहां पे भी वैदिक संस्कृति था। 2000 साल पुराना मित्र मंदिर। तो ये इसका हिस्ट्री बहुत फैसिनेटिंग है। अगर मैं माउस को मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो है लंदन मित्रेयम। मित्रेयम का मतलब है इट इज अ मित्र टेम्पल फाउंड इन लंदन। अभी मित्र कौन है? सन गॉड, ठीक है, सूर्य। श्योर है आप? सन गॉड को मित्र बोला जाता है। व्हाई डू वी कॉल सन गॉड एज मित्र? एनीवन नोस? एनीवन नोस व्हाई वी कॉल सन गॉड एज मित्र? ही इज अ वेल विशर, ओके, एंड ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर अस। ऑलवेज स्टैंडिंग, हमेशा खड़े रहते हैं, राइट? और इनके बिना सस्टेनेंस पॉसिबल नहीं है। सब एक्टिवेट उन्हीं से तो होता है ना। लाइफ साइकिल जो फूड साइकिल बोलते हैं वो एक्टिवेट हो रहा है उन्हीं से। सो सन जो है मित्र है भाई, उनके बिना लाइफ। अब अंटार्कटिका चले जाओ, फिर पता चलेगा कितने कितने इंपॉर्टेंट मित्र हैं हमारे लिए। चलो, आपको समर सीजन में थोड़ा उनसे दिक्कत होता है, फ्रेंड से थोड़ा दिक्कत भी होना चाहिए। सिर्फ सिर्फ यू नो भलाई करने वाले फ्रेंड नहीं होने चाहिए, थोड़ा प्रॉब्लम भी देना चाहिए। सो ऐसे मित्र बहुत जरूरी है, इनके बिना सस्टेनेंस पॉसिबल नहीं है। तो इनका नाम वेदों में दिया गया है मित्र। और यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो के दे ही लैंडेड इन हिज वर्शिप गॉड लैंडेड इन यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ये वैदिक संस्कृति नहीं है तो क्या नहीं है? क्या है फिर? दुनिया का सबसे प्राचीन रेफरेंस फॉर मित्र, मित्र गॉड मित्र इज इन द वेदा, ऋग्वेदा। ओके, रिपीट हो रहा है। सो ओम मित्राय नमः, राइट? ओम मित्राय नमः बहुत फेमस है। अब कई लोगों ने ये श्लोक सुना होगा, कहीं ऋग्वेदिक चैंटिंग कहीं चल रहा है तो हमने ये सुना होगा, ओम मित्राय नमः। सो ये जो देखिए, इसका लोकेशन देखिए कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ है ये? कौन है ये? क्या है यहाँ पे? कौन रहता है? किंग एंड क्वीन। पहले क्वीन थी, अभी किंग रह रहा है। तो हाउ सी हाउ हाउ नियर इट इज। मात्र 2 या 3 किलोमीटर दूर मित्र मंदिर मिल रहा है। और इसका हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कैसे मिला है। यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ पे बम्बार्डमेंट हुआ है, ठीक है? बम्बार्डमेंट होने के बाद दैट एरिया वाज क्लीन्ड अप। और कोई बिल्डिंग था, वो बम्बार्डमेंट हुआ तो बिल्डिंग टूट गया, ठीक है, रबल्स में था। तो उसको पूरा साफ करके इन्होंने सोचा भाई और एक वर्ल्ड वॉर हो गया तो प्रॉब्लम होगा, लेट्स डिग डीपर एंड लेट्स कंस्ट्रक्ट अ सॉलिड फाउंडेशन। सो दे वेंट डीपर, मच डीपर। व्हेन दे वेंट मच डीपर, टंग टंग टंग, क्या है भाई? 3 एकड़ का, 3 एकड़ का साइज है, पूरा अंडरग्राउंड टेम्पल है। आप सोच के देखो, मित्र मंदिर, लंदन मित्रेयम। और वो लोग वहां से आ रहे हैं और हमें मिथोलॉजी बोल रहे हैं। यही है विडंबना। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मित्र और सूर्य ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है अनेकों कल्चर्स में। हर कोई एंशियंट कल्चर के लिए मित्र बहुत इंपॉर्टेंट था, सूर्य या मित्र। और ग्रीक कल्चर में ही वाज कॉल्ड एज हीलियोस। हीलियोस, हीलियम सुना होगा आपने, राइट?
सो हीलिया, हीलिया, ये सब नाम जो है सूर्य से मिसप्रोनाउंस हो के बन गया हीलियोस, वो अलग डेरिवेशन है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। सूर्य शब्द जो है इट इज वैदिक गॉड सूर्य, हीलियोस इज ग्रीक गॉड सन। अब देखिए कितना सिमिलर है, ये ग्रीक सिक्का है, प्राचीन एंशियंट ग्रीक स्क्रिप्ट, एंशियंट ग्रीक कॉइन है, इसमें देखिए सूर्य कैसे, और ये देखिए इंडियन सूर्य, वैदिक सूर्य। ठीक है। सो मित्र जो है ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंशियंट कल्चर्स, क्यों? बिकॉज लाइफ सस्टेनेंस उन पे डिपेंडेंट है, और उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद रहना मतलब जीवन सही से चल रहा है, क्योंकि फार्मिंग से लेके सब कुछ डिपेंडेंट है सन के ऊपर, राइट? सन के बिना तो कुछ नहीं चलेगा, सही है, सन के बिना तो कुछ नहीं चलेगा, तो सन को खुश रखना बहुत जरूरी है। और भी एक इंपॉर्टेंट थे वरुण, पानी, इंद्र, राइट? सो तीन चार देवताओं का बहुत प्रोमिनेंस था, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल द वे टिल यूरोप, अफ्रीका, चाइना, जापान। मैं सब दिखाऊंगा आपको, ट्रेलर दिखाऊंगा, वर्ल्ड वाइड सनातन धर्म का ट्रेलर दिखाऊंगा। मेन जो है महाभारत और कृष्णा के एविडेंस दिखाएंगे, आज ट्रेलर दिखा के हम क्लास के अंदर जाएंगे। तो ये जो है दिस पर्टिकुलर कल्चर वाज कॉल्ड एज मित्राइज्म। मित्राइज्म का मतलब है वर्शिप ऑफ मित्रा, सन गॉड। ठीक है, आई थिंक लेट्स नॉट प्ले स्लाइड शो, ठीक है, जब तक वो आ रहा है। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मित्रा, राइट, ये तो कैरी फॉरवर्ड हुआ, उसके अलावा द वर्शिप ऑफ इंद्र, चलो आ गया, वर्शिप ऑफ इंद्र कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ये देखो, ये इंद्र, मित्र, वरुण, नसत्य, चार वैदिक देवता, इनका वर्शिप हुआ हुआ करता था इन अ प्लेस कॉल्ड टर्की। टर्की पता है आपको? तुर्की, टर्की, जो भी बोलते हैं, दैट कंट्री हैड वर्शिप ऑफ इंद्र, मित्र, वरुण, नसत्य फॉर वैदिक गॉड्स, कैरीड फॉरवर्ड ऑल द वे फ्रॉम हियर इन टर्की। आज क्या हाल है टर्की का? नोबडी नोज, क्लू नहीं है लोगों को क्या उनका पास था। और ये जो इंस्क्रिप्शन है 3400 साल पुराना है, ये डिपिक्शन है, रियल फोटो नहीं है, रियल फोटो अवेलेबल नहीं है, बट आप सर्च कर सकते हो बोगैस्कॉय इंस्क्रिप्शंस, नेट में आप सर्च करोगे तो पूरा डेटा मिलेगा, शॉकिंग डेटा है। टू डायनेस्टीज, हिटाइट डायनेस्टी, मिटानी डायनेस्टी, दो राजा जो है संधि कर रहे हैं, ट्रीटी कर रहे हैं। जब भी हम ट्रीटी करते हैं विटनेस रखते हैं ना, विटनेस, तीन विटनेस रखते हैं, तो इन्होंने चार विटनेस रखा है, इंद्र, मित्र, वरुण, नसत्य। हे देवताएं, देवताओं आप विटनेस हो, विटनेस, हम दोनों के बीच में हम एक संधि कर रहे हैं, उस संधि में आप विटनेस हो, यूर विटनेस फॉर दिस ट्रीटी। कहां पे मिला है? टर्की पे मिला है। सो दिस इज वेरी फैसिनेटिंग बिकॉज अभी अंग्रेजों की बात चली तो मैं अंग्रेजों का पूरा हिस्ट्री डिसमेंटल कर रहा हूँ। ठीक है, उनका उनका फाउंडेशन भी तोड़ना जरूरी है ना, यहाँ पे आके हमें मिथोलॉजी बोल रहे हैं, हमें भी थोड़ा उनको आईना दिखाना जरूरी है। तो इनका कल्चर कहाँ से शुरू हो रहा है? आप देखिए, यूरोपियन हिस्ट्री जब आप स्टडी करते हैं देन यू फाइंड दैट इन ब्रिटिश टेक्स्ट बुक्स, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में कई जगह पे ये मेंशन्ड है कि हमारा हिस्ट्री जो है इट बिगिंस विद द अराइवल ऑफ ड्रुइड्स, DRUIDS, ड्रुइड्स, ग्रुप ऑफ पीपल बाय द नेम ऑफ ड्रुइड्स। और उनके वॉरियर्स जो थे वो थे केल्टिक वॉरियर्स, सुना होगा आपने, Celtic warriors. तो Celtic warriors were kind of Kshatriyas, Druids were kind of the Brahmanas. अभी कौन है Druids, कौन है Celtic warriors, कौन है? तो Druids का हिस्ट्री बहुत फैसिनेटिंग है। आप देखो यहाँ से यूके, अभी यूके तो यहाँ पे है इस तरफ, करेक्ट, और दूर जाएंगे इस तरफ और जाएंगे तो लास्ट में यूनाइटेड किंगडम आता है, जर्मनी, फ्रांस वगैरह सब आता है। सो व्हेन यू स्टडी द मूवमेंट ऑफ पीपल, यूके में क्या है, लोग बोलते हैं कि भाई ड्रुइड्स ईस्ट से आए थे, पूर्व से आए थे, पूर्व से आए थे, the druids came from the east and our culture started। ठीक है, तो druids कहाँ से आए थे? That is answered in the anthropological research on the Vedic जनपद। ये सब वैदिक जनपद है। अभी देखिए ये 5 जनपद, जनपद मतलब राज्य मान लो आप, राज्य, ये 5 राज्य बहुत प्रोमिनेंट थे वैदिक पीरियड में, मतलब वैदिक पीरियड तो वैसे आप बोल सकते हो प्री महाभारत पीरियड। तो द्रुह्यु, अनु, यदु, पुरु, तुर्वासु, 5 वंश थे। ये 5 कौन थे? महाराज ययाति के बेटे थे 5। महाराज ययाति कितने लोग ने सुना है? कितने लोग ने सुना है? कितने लोग ने नहीं सुना है महाराज ययाति? 1 2 3, नहीं कुछ लोग दोनों के लिए हाथ उठा रहे हैं, मतलब ठीक है, 1 2 है, दोनों के लिए हाथ उठाए।
सो 5 वंश हैं, ठीक है। ये 5 वंश जो है, 5 बेटों, उनके 5 बेटे थे, द्रुह्यु, अनु, पुरु, यदु, तुर्वासु। अभी द्रुह्यु को रीजन दिया गया था गंधार के पास, गंधार, विच नाउ केम टू बी नोन एज, हाँ, कांधार, राइट, गंधार बिकेम कांधार। सो अनु को दिया गया था पंजाब रीजन, पाकिस्तान और इंडिया का जो आज का पंजाब है, उस रीजन को दिया गया था अनु को। अनु जो उनको बेटा था, उनको वो रीजन दिया गया था। यदु जो है, यदु को दिया गया था गुजरात के पास। आप सोचते हो कि यदु जो है मथुरा से गए हैं, नहीं, यदुस का ओरिजिनल रीजन जो है गुजराती है। गुजरात से वो मथुरा गए थे महाभारत पीरियड के कुछ टाइम पहले। फिर महाभारत पीरियड जब जब जरासंध का अटैक हो रहा है, वो फिर से वापस आ जाते हैं अपने एंसेस्ट्रल लैंड में। और जब द्वारका सबमर्ज हो जाता है, फिर वापस मथुरा चले जाते हैं, वापस मथुरा चले जाते हैं। सो दे आर माइग्रेटिंग बिटवीन व्रज एंड गुजरात, यादवास। तो यदुस का जो रीजन है ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, इट वाज गुजरात रीजन, गुजरात, महाराष्ट्र। तो वैसे आप लोग का जो वैदिक काल में, मतलब जब ययाति महाराज का पीरियड था, दिस रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यदु महाराज, यदु महाराज। एंड पुरु, पुरु जो है, ही वाज गिवन द हार्टलैंड, भारत का जो दिल है, राइट, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, जिसको दिल्ली बोलना नहीं चाहिए, इंद्रप्रस्थ है, सुंदर नाम है, चलो समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिसको आज हम दिल्ली बोलते हैं। तो दिल्ली, एंड देन यू नो व्रज, ऑल दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पुरुष, यूपी, बिहार। और नीचे ईस्ट इंडिया से साउथ इंडिया पूरा तुर्वासु को दिया गया था। तो ये जो द्रुह्यु है, द्रुह्यु वंश के जो लोग, मतलब द्रुह्यु राजा नहीं, द्रुह्यु वंश के लोग और अनु वंश के लोग, और द्रुह्यु एंड फ्यू अदर किंगडम्स के बीच में लड़ाई बहुत चल रहा था। तो द्रुह्यूज दे डिसाइडेड, भाई यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो फार। तो दे वेंट फार एंड फार एंड फार एंड फार, एंड उनको ये वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थर्न यूरोप बहुत अच्छा लगा। दे गॉट सेटल्ड एंड दे बिकेम दी ड्रुइड्स। यहाँ पे उनका हिस्ट्री खत्म होता है, यूरोप में उनका हिस्ट्री शुरू हो जाता है। तो द्रुह्यु बन जाते हैं ड्रुइड्स, ड्रुइड्स, राइट। बहुत फैसिनेटिंग है। तो अभी आप सोचोगे कि अरे यार कुछ भी बोलते हो, नाम सेम है तो एक हो जाएंगे क्या, क्या प्रूफ है? पूछ सकते हो ना, पूछ लो, गलत नहीं है, पूछ सकते हो आप। तो ये इसलिए सेम है क्योंकि देयर आर मल्टीपल स्कॉलर्स, उन्होंने पूरा, मतलब मेरे पास उन स्कॉलर्स के साथ कांटेक्ट भी है, मेरा खुद का भी रिसर्च है, और मैं फैसिनेट हुआ जब मैंने इसके ऊपर स्टडी किया, फैसिनेटिंग था। तो इसमें से 2 या 3 एविडेंसेस आपको दिखाऊंगे या बताऊंगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा। ये देखिए, ये जो है द्रुह्यूज के रीजन से मिला है, 2000 साल से भी प्राचीन एक सिक्का है, 2000 साल से भी पुराना एक प्राचीन सिक्का। आप बता सकते हो क्या, व्हाट इज शोन इन दिस कॉइन? ये मिला है डेनमार्क से। डेनमार्क कहाँ पे है भाई? डेनमार्क यहाँ पे है, इंडिया में, एशिया में, कहाँ पे है? नॉर्थर्न यूरोप में है, जहाँ पे ड्रुइड्स का रूल हुआ करता था, राइट, कैल्टिक वॉरियर्स का रूल हुआ करता था। So this place is called as Ganderstrup Cauldron, Gunderstrup, Ganderstrup Cauldron। Ganderstrup Cauldron बहुत ही प्राचीन एक साइट है, खुदाई में बहुत सारी चीज़ मिले, बहुत सारी चीज़ मिले। उसमें ये सिक्का बहुत फैसिनेटिंग है। बता सकते हैं क्या है इस सिक्के में? लक्ष्मी माता, मतलब कुछ भी लक्ष्मी माता। कैसे बोले लक्ष्मी माता? हाथी है, कोई स्त्री खड़ी है, तो हम सोच लेंगे माता लक्ष्मी आ गई। क्यों? सिक्के में आ गए ना, पैसे, सिक्के तो पैसे हैं, लक्ष्मी देवी होगी, और कौन हो सकता है? गुड गेस। ओके, एनीवन एल्स लाइक टू से सम अदर डिफरेंट आंसर्स? कौन हो सकता है? हाँ? थोड़ा थोड़ा, कुछ लोगों ने सुना नहीं है, कुछ लोगों ने सुना नहीं है, तो आप थोड़ा और स्ट्रांगली बता दो कि लोग सुन ले आपने क्या बोला। हाँ बताइए। हाँ हाँ, सुन लिया ना आपने, सब लोगों ने सुन लिया। मम्मी की रीत। मतलब आई हैव गिवन दिस सेमिनार मोर देन 300 to 400 प्लेसेस एटलीस्ट दिया रहूंगा। फर्स्ट टाइम आई गॉट दिस काइंड ऑफ आंसर। मतलब ऐसे डिफरेंटली कोई सोचा नहीं है, really. That was good, okay, but it's not correct. Okay, anyone else like to try? समुद्र मंथन, यहाँ पे कहाँ है समुद्र मंथन? नहीं, ये तो समुद्र मंथन कहाँ पे? मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए।
कहाँ पे है समुद्र मंथन? तो देव असुर होना चाहिए, बीच में पहाड़ होना चाहिए। पहाड़ के ऊपर पहाड़ तो है नहीं यहाँ पे। हाँ हाँ, somebody is coming out of fire, न्यू न्यू कुछ कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ हाँ, ये डेनमार्क से मिला है। तो आप कैसे मान सकते हो लक्ष्मी, वहां पे तो सनातन धर्म था ही नहीं। यस। नहीं, मौर्यन एम्पायर कहाँ पे, डेनमार्क में कहाँ पे गया? हाँ, नहीं सही है, आपका पॉइंट सही है। डेनमार्क में कहाँ पहुंच गए मौर्यंस? सही है, डेनमार्क से मिला है, 2000 साल से भी प्राचीन सिक्का है। जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे, कंटेंट बहुत है दिखाने के लिए, तो प्लीज लास्ट ट्राई एनीवन। नो, बता दो। इंद्रदेव कहाँ पे आपको? मेल फीमेल का तो डिफरेंस पता होना चाहिए ना। सिक नहीं नहीं, इंद्र कहाँ पे है बताइए। ये तो देवी माता टाइप की फीमेल फिगर है, मेल कहाँ पे है बताइए। ओके, सो द पॉइंट इज, दुनिया में सी दैट अगेन कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट कॉल्ड एज आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉर्म्स, जो रूपों को हम आकार को स्टडी करते हैं कि ये हाथ ऐसा है, इसमें शंख है, गदा है, या किसी के सर पे गंगा है तो वो शिव है। तो ऐसे हम रूपों को जब स्टडी करते हैं, पूरे विश्व में कोई ऐसी पर्सनालिटी है नहीं, फीमेल डेटी या फीमेल गॉडेस नहीं है जिसको हाथी अभिषेक कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर और लोटस के ऊपर खड़ी है। ये आइकोनोग्राफी में सिर्फ एंड सिर्फ एक ही यही है, और कोई नहीं है। तो आप सोचोगे चलो 50-50 मैं मानता हूं, काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल है, बट हम कैसे माने कि लक्ष्मी है? और प्रूफ दो। और प्रूफ ये है कि मैंने फोटो डाला नहीं है, बट आपको बता रहा हूं, आप चेक करना है, आप नेट में भी चेक कर लेना। गंडरस्ट्रुप कॉलरॉन पशुपति, गंडरस्ट्रुप कॉलरॉन पशुपति, पशुपति सील्स मिले हैं पशुपति के, भगवान शिव के सील्स, सील्स मिले हैं। सील्स समझ रहे हो? सील्स मतलब स्क्वायर शेप के होते हैं, तो उसमें पशुपति कार्ड है। और एक एविडेंस मिला है वहां पे, स्वस्तिक मिला है, स्वस्तिक। ये ड्रुइड्स वहां पे शासन करते थे, ड्रुइड्स। तो कैसे सनातन धर्म माइग्रेट हुआ है, जैसे मैंने मित्र बताया, मित्र मंदिर, अभी गंडरस्ट्रुप कॉलरॉन। इंद्र, इंद्र जो है वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बारिश तो चाहिए, बारिश तो चाहिए। सिर्फ सूर्यदेव अपना मित्रता दिखाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा तो भी मुश्किल हो जाएगा, तो हमें बारिश भी चाहिए, इंद्र इंद्र की कृपा चाहिए। तो इंद्र की पूजा बहुत प्रोमिनेंट थी। हम भागवत में यही देखते हैं ना, इंद्र पूजा कितनी प्रोमिनेंट थी। कृष्णा हैड टू लिटरली से बस करो, बहुत हो रहा है, राइट? कोई मैं ग्रीक एंड लैटिन तो नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? इंद्र वर्शिप वॉज वेरी प्रोमिनेंट एंड कृष्णा सेड बस करो, गोवर्धन की पूजा करो। सो इंद्र वर्शिप जो है बहुत ही प्राचीन है, वेदों में इसका वर्णन है, और अनेकों कल्चर्स ने इसको अडेप्ट किया, राइट? ये सब वहाँ के लोगों को पता नहीं है। उनको क्या है, जब उनके एब्राहमिक रिलीजन्स अंदर आ जाते हैं, उनका पास्ट उनको पता नहीं है कि क्या था। बट अगर आप स्टडी करोगे तो उनका हिस्ट्री पूरा कहीं ना कहीं भारत से कनेक्टेड है। तो ये जो है इंद्र वर्शिप, इंद्र टेमिंग द ड्रैगन, ड्रैगन टेमिंग स्टोरी, और जाइजेंटिक स्नेक जो है उसको टेम कर रहे हैं, ये स्टोरी, ये जो है इसको आइकोनोग्राफी में बहुत ही प्रोमिनेंस मिला है पूरे विश्व में, राइट? इंद्र वर्शिप। और ये बहुत फैसिनेटिंग है। कितने लोग के पास है अभी? कितने लोग के सर पे है? 1 2 3 4 5, हाँ 5 6 लोगों के पास है, ठीक है। क्या है? बोलिए ना। शिखा है, राइट? और ये जो है, ये भी बहुत प्राचीन स्टैच्यू है, मिला है टर्की में। शिखा का मतलब क्या है? सनातन धर्म या वैदिक संस्कृति से अपने को जोड़ रहा है, क्योंकि बुद्धिस्ट नहीं रखते हैं या और कोई रिलीजन इसको रखते नहीं है। और सनातन धर्म के अंदर भी जो वेदों को सर्वोपरि मान रहा है वो रखता है इसको। मिला है तुर्की में। तुर्की में इसका क्या काम है? तुर्की में क्या काम है? तुर्की में मिला है। सो ऐसे कई प्रदेशों का नाम, कई सिटीज का नाम, जैसे तक्षशिला। तक्षशिला नाम कहाँ से आता है पता है आपको? मतलब सॉरी, तक्षशिला प्राचीन नाम है, वो आज क्या बन गया? तक्षशिला।
तक्षशिला बन गया तक्षशिला पाली लैंग्वेज में, पाली भाषा में, फिर बन गया तकसीला। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज ने बोला है इट्स टैक्सीला, टैक्सीला। बहुत सुंदर सुंदर नाम है, इनको प्रोनाउंसिएशन आता नहीं है तो उसको, राइट। सो जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में एक शहर है जिसका नाम है उडगमंडलम, आपको शायद मुश्किल होगा प्रोनाउंस करने के लिए, उडगमंडलम। तो अंग्रेज आए, बोल दिए ऊटी, ऊटी, सिंपल है ऊटी। तिरुवनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम, इसको कर दिया ट्रिवेंड्रम, ट्रिवेंड्रम। सो वैसे ही जैमिनी अपने किताब में लिखते हैं, जैमिनी इज अ वेरी एंशियंट वैदिक ऋषि, तो वो अपने किताब में लिखते हैं कि द लैंग्वेजेस ऑफ दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाय द मिसप्रोनाउंसिएशन ऑफ संस्कृत। समझ रहे हैं, दुनिया की भाषाएं जो है संस्कृत के मिसप्रोनाउंसिएशन से क्रिएट होते हैं, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, एक शहर है जिसका नाम है थानेसार, कितने लोगों को पता है थानेसर? शायद यहाँ पे महाराष्ट्र में पूछता हूँ, कुरुक्षेत्र के पास पूछता हूँ कि ज्यादा आपको आइडिया नहीं है, गए नहीं है क्या कुरुक्षेत्र आप लोग? जाना चाहिए जरूर। कुरुक्षेत्र में गीता जहाँ पे बोला गया था, तो वहाँ पे प्राचीन एक शिव मंदिर है जहाँ पे पांडवों ने भी वहाँ पे पूजा की है, इसका नाम है स्थानेश्वर महादेव। स्थानेश्वर, स्थानेश्वर शब्द जो है बन गया थानेसर आज के कॉन्टेक्स्ट में। तो थानेसर जो है आज का नाम है, बस थानेश्वर जब नाम था तब चाइनीज वहाँ पे आ रहे हैं, शहर का नाम है स्थानेश्वर। तो चाइनीज ट्रैवलर्स पता है क्या बोलते हैं, जैसे युआन च्वांग थे, फाहियान थे, ये ट्रैवलर्स ने स्थानेश्वर शहर को प्रोनाउंस कैसे किया है, स्थानेश्वर को कर दिया सातानीसोफोलो, सातानीसोफोलो। मथुरा को एक ग्रीक राइटर ने कर दिया मेथोरा, इंद्रप्रस्थ को एक ग्रीक राइटर ने कर दिया इंदबरा, और एक ने कर दिया इंदोपथ। ऐसे यू नो ऑल लैंग्वेजेस ऑफ दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाय द मिसप्रोनाउंसिएशन ऑफ संस्कृत। मदर कहाँ से आ रहा है, मातृ से आ रहा है। फादर कहाँ से आ रहा है, ब्रदर, भ्राता। मिसप्रोनाउंस करो, संस्कृत को गलत प्रोनाउंस करो, नया भाषा क्रिएट कर सकते हो आप, सिंपल है। और 2 3 4 5 डिराइव करके 4 5 बार उसको मिसप्रोनाउंस करते जाओ, ऐसा लैंग्वेज क्रिएट होगा कि संस्कृत का उसका कोई संबंध ही नहीं होगा, इतना डिफरेंट हो जाएगा, राइट। सो वैसे ही आप देखिए आज के जो पर्शियंस हैं, पारसी जो शब्द है वो कहाँ से आता है, वेद से आता है। पार्श्व, पार्श्व जनपद, पार्श्व लोग थे। और पख्तून्स जिसको आज हम बोलते हैं पठान, सो पठान शब्द जो है इट इज ऑल्सो, उसका ओरिजिन जो है वो भी वेद से है। पख्तून्स बन जाता है पश्तून, पठान। खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस सुना होगा ना आपने, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस जो है उसका नाम, पख्तून का नाम जो है वो आता है वेद से आता है। ऐसे कई नाम है, कई शहर हैं। तो वैसे हिस्ट्री हमारे सामने मिटता जा रहा है, इन्वेजन हो रहा है, वॉर्स हो रहे हैं, लोग फैनेटिक्स बन के प्राचीन हिस्ट्री को मिटा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है। बट अब देखो ये अभी रिसेंटली ये स्टैचू तोड़ा गया था फ्यू डेकेड्स बिफोर, बट देखिए अफगानिस्तान से मिल क्या रहा है, प्राचीन सिक्के मिल रहे हैं भगवान कृष्ण और बलराम के। ये लास्ट के स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, कृष्ण और बलराम के सिक्के हैं, कृष्णा विद चक्रा एंड बलराम विद हल एंड गदा। जब ये मैं एक पॉडकास्ट में गया था तो मैंने ये सिक्के के बारे में बात किया, पॉडकास्ट वायरल हो गया था, उसका एक शॉर्ट जो है 30 सेकेंड्स 1 मिनट का उसने डाला इंस्टाग्राम में, वायरल हो गया, 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हो गया। तो बहुत सारे लोग कमेंट करने, ए क्या तुम क्या बोल रहे हो, ये तो कृष्णा हो ही नहीं सकते हैं, कृष्णा हो ही नहीं सकते हैं। देखो वो जो चक्र है ना उसमें 8 है, 8 बुद्धिस्ट धर्म चक्र है, बुद्धिस्ट धर्म चक्र है। मैं बोला ठीक है, हम बुद्धिज्म को रेस्पेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ये बोल नहीं सकते हो कि ये बुद्धिस्ट धर्म चक्र है। क्यों? बिकॉज ये जो है पास में वासुदेव लिखा है, तो नीचे कमेंट में बहुत सारे लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं ये वासुदेव एक राजा था, वहां पे एक वासुदेव नाम का राजा था जो बुद्धिस्ट था। तो मैंने बोला भाई सब सही है, अच्छा है, पर उसके पास में और एक सिक्का भी तो मिला है, उसमें लिखा है समकर्षणा, जिसके हाथ में हल और गदा है। और क्या एविडेंस चाहिए? समकर्षण नाम के कोई राजा थे जो हल और गदा पकड़ के, मतलब कुछ भी बोल देंगे आप, हो ही नहीं सकता है। तो फिर उसके बाद कमेंट बंद हो गया, लोग चुप हो गए, चलो हाँ चलो। सो ये जो सिक्के हैं मिले अफगानिस्तान से, राइट, कृष्णा एंड बलराम के सिक्के। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे ये मंदिर है
16 टाइम्स इसका डेमोलिशन हुआ, राइट। ये मूल स्थान मंदिर है, जो आज इस शहर का नाम क्या है? मुल्तान। मुल्तान में प्राचीन सूर्य मंदिर था। वहां पे इवन सांबा, सांबा कौन है बताया आपको? कृष्ण के, श्योर, श्योर है? हाँ, कृष्ण के सन, कृष्ण के बेटे जो है यहाँ पे पूजा करते थे मुल्तान, मूल स्थान मंदिर में। सूर्य देव का मंदिर है ये। आज इसका हाल देखिए क्या है। बहुत ही प्राचीन आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल साइट है, ये हाल है आज। सो कई रिलीजन्स कल्चर्स आप देखेंगे, उसका रूट आप ट्रेस करते जाएंगे, भारत में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल असुर, असुर जो है इट इज एन एनिमिकल कैरेक्टर, ऑपोजिट है। देवता की तरह बिहेव करो, असुर की तरह। बच्चों को बोलते ना, अरे असुर की तरह बात कर रहे हो, शांत हो जा बेटे, असुर की तरह बिहेव मत करो, शांत हो। अभी असुर जो है इनिमिकल है, ऑपोजिट कैरेक्टर है। देव जो है, हमें बोलते हैं कि देवता के कैरेक्टर्स लेना जरूरी है। पर आप देखो ईरान में क्या हो गया, ईरान में देव जो है वो असुर बन गया, असुर जो है देव बन गया। वहां के जो गॉड थे उसको अहुरा बोला गया, अहुरा, अहुरा माजदा, अहुरा, असुर का अहुरा। तो फिर वहां वहां के जो असुर थे, मतलब वहां पे जो एनिमिकल कैरेक्टर है, उसका नाम दिया गया देव, दैवा। सो काइंड ऑफ रेबेलियस कल्चर टू भारत वहां पे क्रिएट होना शुरू हुआ। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ऑल लैंग्वेजेस ऑफ दिस वर्ल्ड आर मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ संस्कृत। देखिए अफगानिस्तान में एक नदी थी, प्राचीन नदी है, आज उसका नाम है हेलमंड रिवर। हेलमंड रिवर का प्राचीन नाम क्या था? हरकवती। हरकवती, हरकवती क्या है? स्टार्टिंग में आप लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा साइलेंट हो गए। पीएचडी थीसिस थोड़ी ना प्रेजेंट कर रहा हूँ, सिंपल सिंपल है। हाँ, बताइए हरकवती, हरकवती नाम, यस। सरस्वती, सरस्वती नाम को मिस प्रोनाउंस करिए, बन जाता है हरकवती। एक प्राचीन नदी का नाम उन्होंने रख दिया हरकवती, जिसका नाम आज डिफरेंट है। तो ये कहाँ से आ रहा है? सरस्वती से आ रहा है। और एक नदी है वहां पे जिसका नाम हरायू है, हरायू, वो कहाँ से आ रहा है? सरायू से। और 16 होमलैंड्स थे, ईरानियंस जो प्राचीन ईरानियंस थे, प्राचीन ईरानियंस के 16 होमलैंड, होमलैंड समझ रहे हैं आप? मतलब 16 एरिया, 16 जोग्राफिकल लोकेशन से वो लोग आके ईरान में सेटल हुए प्राचीन काल में। तो उसमें से एक होमलैंड का नाम है सप्त सिंधु। बट उनको सप्त सिंधु प्रोनाउंस नहीं हो पाता था, तो उन्होंने उसको प्रोनाउंस किया हप्त हिंदू, हप्त हिंदू, हप्ता हिंदू। इसको हप्ता छोड़ दो, बन गया हिंदू। समझ रहे? हप्ता हिंदू, हिंदू। सो आप बताओ आर्यन अभी कैसे भारत से बाहर गए हैं, बाहर से अंदर आए? बाहर से बाहर गए होंगे, क्योंकि अगर हरकवती ओरिजिनल नाम है, हिंदू ओरिजिनल नाम है, तो वो नाम ऐसे ही लेके आ सकते थे हरकवती। यहाँ पे भी सरस्वती नदी थी ना, उस नदी का नाम हरकवती हम रख लेते। क्यों हमने सरस्वती रखा फिर? क्योंकि हमारे पास तो ह साउंड है, ह है हमारे पास, हरकवती को एज इट इज रख सकते थे। बट वेरास यहाँ से जब हम बाहर जाएंगे तो वहां पे प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा था स। सरस्वती हरकवती बन सकता है, हरकवती सरस्वती नहीं बन सकता है। हरकवती को हरकवती रख सकते हैं, वाई वी नीड टू चेंज इट टू सरस्वती? वेरास सरस्वती हरकवती बन रहा है तो उसमें लॉजिक है, समझ रहे? क्योंकि वहां पे स साउंड नहीं था। सो इट क्लियरली शोज दैट यहां से लोग पूरे विश्व में गए हैं और संस्कृति को फैलाए हैं। ठीक है, अभी हम एक्चुअली पता है, अभी सेमिनार अभी शुरू हो रहा है, अभी पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा था। सो अभी हम आ रहे हैं भगवान कृष्ण और महाभारत के प्रमाणों के अंदर, एक्चुअल में अभी पैर रख रहे हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, ये जो है आई हैव कलेक्टेड हंड्रेड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज एपिग्राफी। तो एपिग्राफी में क्या होता है, हम प्राचीन इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं। तो इंस्क्रिप्शन, ओके बिफोर वी स्टार्ट जी, कितना टाइम? 9:30, ओके। सो इंस्क्रिप्शन, अभी इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जैसे दीवार है, पत्थर है, पिल्लर है, वहां पे लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि
लिटरेचर जो है कभी भी अटैक हो सकता है, जैसे नालंदा में हुआ, तक्षशिला में हुआ, विक्रमशिला में हुआ, मल्टीपल लाइब्रेरीज अटैक हो गए, बुक्स बर्न हो गए, बुक्स डिस्ट्रॉय हो गए, टर्माइट्स ने खा लिया, इंसेक्ट्स ने खा लिया, या उसका एज हो गया। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू राइट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन स्टोन्स, पिलर्स। उसको लिखा जाता था कि भाई हजारों साल के बाद भी लोग आके देखें इंस्क्रिप्शंस। तो इस स्टडी को बोला जाता है एपिग्राफी। अभी एपिग्राफी में ये क्यों क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि भारत में प्रचार चल रहा था कि कृष्णा जो है ही इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर। कृष्णा जो है थे नहीं वास्तव में, ये ब्राह्मणों ने क्रिएट कर दिया इसको। ओके, आई थिंक थोड़ा एक्टिवेशन जरूरी है। आप लोग है हो मतलब ऐसे ऐसे तो पूरा साइलेंट, मतलब कोई रिएक्शन नहीं है, ऐसे लग रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ और ऊपर से जा रहा है, लैंड हो रहा है और कहीं पे। दे आर डीप थिंकिंग, मेडिटेटिंग ऑन दैट। या सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी हम एक्चुअल में एविडेंसेस को टच कर रहे हैं। अभी एविडेंसेस क्यों क्रिटिकल है, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन था भारत में तो उन्होंने ये एक बहुत स्ट्रांग नैरेटिव फैलाया कि भाई महाभारत घर में मत रखो, लड़ाई हो जाएगा। कितने लोग ने सुना है ये चीज? हर किसी ने सुना है, महाभारत मत रखना लड़ाई हो जाएगा। कृष्णा जो है नाम के व्यक्ति थे ही नहीं, झूठी कहानी है, क्रिएट हो गया एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। पता है सच में कौन था? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट। देखो अभी फिर भी मैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं सब रिलीजन्स को, ऐसे नहीं कि हम कुछ बुरा, उनके लिए कुछ बुरा नहीं बोल रहे। हम इन्होंने कैसे गेम खेला वो मैं समझा रहा हूँ। क्राइस्ट शब्द जो है वो ओरिजिनल है, क्राइस्ट इज ओरिजिनल। क्राइस्ट को ब्राह्मणों ने कॉपी कर दिया और बना दिया कृष्णा। क्राइस्ट जो है वो भी प्रचारक थे, धार्मिक प्रचारक। कृष्णा भी धर्म के प्रचारक थे। क्राइस्ट ने एक रिलीजन शुरू किया, कृष्णा को भी उन्होंने रिलीजन शुरू करवा दिया। क्राइस्ट जो है शेप हर्ड थे, शेप हर्ड। कृष्णा जो है काउ हर्ड थे। नाम भी देखो, क्रिस्ट, कृष्णा, दोनों एक ही है। बट कौन आदि है? क्राइस्ट आदि है। क्यों? क्राइस्ट से ही सब कॉपी हुआ है। ये फैला रहे थे भारत में। अभी आप बताओ क्राइस्ट कब आए थे हिस्टोरिकली स्पीकिंग? 2000, 2024 साल पहले। अब उसमें भी डिबेट बहुत है कि एग्जैक्ट ईयर कौन सा है, ऊपर नीचे है। चलो हम उस पर जाते नहीं हैं, हम हाइपोथेटिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 2024 साल पहले क्राइस्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, 2024 साल पहले। तो अगर क्राइस्ट के जन्म के बाद कृष्णा नाम के व्यक्ति को क्रिएट किया गया है, ब्राह्मणों ने क्रिएट किया, तो उसके पहले तो कोई प्रमाण नहीं मिलना चाहिए 2000 साल पहले, 2024 साल पहले। मिले तो बहुत है, ये 2300 साल पुराना है। 2300 साल पुराना, इसमें लिखा है ये जो गरुड़ा स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ, वासुदेव का गरुड़ स्तंभ है। वासुदेव, देवों के देव वासुदेव। जनरली देवों के देव क्या बोलते हैं? हाँ, यहाँ पे लिखा है देवों के देव वासुदेव। देवों के देव वासुदेव, इनके लिए ये गरुड़ स्तंभ बनाया जा रहा है। बनाने वाले व्यक्ति का नाम है हीलियोडोरस। मैं एक भागवत हूं, भागवत। मैं नहीं, वो अपने को बोल रहे हैं भागवत। वो सन, ही इज द सन ऑफ डियोन। डियोन नाम के एक व्यक्ति के बेटे हैं। एंड ही इज कमिंग फ्रॉम तक्षशिला। तक्षशिला, ग्रीक एम्बेसडर हु केम फ्रॉम द ग्रेट किंग अंतियाल की दास। मतलब अंतियाल की दास नाम के एक ग्रीक राजा हैं, ग्रेट राजा हैं। तो उन्होंने उन्होंने मुझे भेजा है किससे मिलने के लिए? किंग काशीपुत्र भागभद्रा। काशी के एक राजा हैं जिनका नाम है भागभद्रा। आई एम गोइंग टू मीट हिम। रास्ते में जा रहा हूं, मैं चुपचाप तो नहीं गया, मैंने रास्ते में मंदिर बनवा दिया। किसके लिए बनवा लिया? देवों के देव वासुदेव के लिए मंदिर बनवा लिया। मंदिर बनवा के वहां पे ये दुनिया के, चलो आप एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। आपने, आप में से कितने लोगों ने फॉरेन डिवोटीज को देखा है, मतलब विदेशी भक्त? तो महाराज इसको छोड़ दो, जैसे ब्रह्मचारीज एंड गृहस्थास में जो जो फॉरेन डिवोटीज हैं, अमेरिका से आए हैं, यूरोप से आए हैं, चीन से आए हैं, आपको कैसे फील होता है जब देखते हो?
कैसे फील होता है, जल्दी बोलेंगे। हाँ, प्राउड फील होता है। और चलो चलो, मेरे कल्चर को भी फॉलो कर रहे हो, अच्छी बात, आ जाओ आ जाओ। हाँ, और आदत नहीं है, अलग लगता है कुछ तो, अलग है यार। हाँ, और क्या लगता है आपको, क्या फीलिंग होता है? बहुत सीरियस है, हमारे जैसे रिलैक्स नहीं है। ओके, और इंस्पायरिंग, दैट्स अ वेरी गुड वर्ड, इंस्पायरिंग, इंस्पिरेशन फील होता है। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आप ये इंस्पिरेशन ले सकते हो, दुनिया के सबसे प्राचीन रिकॉर्डेड फॉरेन डिवोटी यही है। रिकॉर्डेड फॉरेन मतलब इससे भी प्राचीन हो सकते हैं, बट ये रिकॉर्डेड है। 2300 साल पुराना ग्रीक ट्रैवलर है, जो ग्रीक भाषा बोलता था, जिसका नाम है हिलियोडोरस। वो भगवान वासुदेव के लिए मंदिर बनवा रहा है। बनवा के सामने पिलर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा ना, मंदिर के सामने पिलर होता है। जैसे एनवीसीसी में आपने देखा होगा, बालाजी मंदिर के सामने पिलर है, ध्वज स्तंभ, गरुड़ स्तंभ जिसको बोलते हैं। तो उस पिलर में एक्चुअली वहां पे इंस्क्रिप्शन कर सकते हैं ना, इट्स वेरी गुड आइडिया। वहां पे एक इंस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं कि कलयुग के इस साल में, विक्रम संवत के इस साल में ये मंदिर बनवाया है एनवीसीसी। अच्छा आइडिया है एक्चुअली, मैं राधेश्याम प्रभु को सजेस्ट कर सकता हूँ। या सो गरुड़ स्तंभ जो है, गरुड़ स्तंभ में इंस्क्रिप्शन होता है, प्राचीन मंदिरों में इंस्क्रिप्शन होता है। इंस्क्रिप्शन होने का ये बैकग्राउंड है कि वो बताते हैं कि भाई ये मंदिर जो है इस टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, कंस्ट्रक्ट करने वाले का नाम, पर्पस, सब लिखते हैं। 2300 साल पुराना। अब बताओ, कृष्णा कैसे आए क्राइस्ट से? जी, ये मध्य प्रदेश में है, इन विदिशा। विदिशा में, शहर में ही है। आप सर्च करेंगे बेस नगर कॉलम, इसका नाम है बेस नगर पिलर। दिस इज डिस्कवर्ड अराउंड 200 150 इयर्स बैक, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको डिस्कवर किया था। अभी फेमस हो रहा है, वैसे फ्यू ऑफ अस आर मेकिंग इट फेमस, अदरवाइज इतना फेमस नहीं था ये। या भारत में है। हाँ, ठीक है। तो आप देख लो, दुनिया का सबसे प्राचीन फॉरेन डिवोटी मंदिर जो है, उसके सामने मंदिर जो है अवेलेबल नहीं है, पूरा डिसमेंटल हो चुका है, टूट चुका है, व्हाटएवर, बट पिलर है। पिलर अभी भी अवेलेबल है। पिलर इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं हुआ क्योंकि जो इन्वेडर्स आए, सब क्या पिलर ऐसे खड़ा है, लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली इसकी पूजा करते थे लोग, सोचते थे कि कोई पिलर में डिवाइन पावर्स है, भी था भी पता नहीं, तो इसकी पूजा करते थे, इसको बहुत रेस्पेक्ट देते थे। तो कभी इस अटैक नहीं हुआ, इसके ऊपर हल्दी चंदन वगैरह लगा देते थे। सो किसी ने इसको समझा नहीं कि इसका कोई वैल्यू है, तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बच गया। आज हमारे पास एविडेंस है। अलेक्जेंडर कनिंघम जब गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड था वो ब्रिटिश पीरियड में, तो उसने इसको डिस्कवर किया। ये कुछ तो है भाई इस पिलर में, इतना क्यों वर्शिप कर रहे हैं लोग, बहुत प्राचीन लग रहा है। चलो सब हटो। तो उसने पूरा चंदन वंदन सब साफ करके जब स्टडी किया, वो शॉक हो गया, भाई ये तो बहुत प्राचीन है। तो तब ये रिकॉर्ड हुआ पहली बार, 2300 ईयर ओल्ड इंस्क्रिप्शन, इंडो ग्रीक स्क्रिप्ट है। राइट। तो ये ग्रीक सोर्सेस है। तो ग्रीक जो है, ग्रीक्स जो है, कई ग्रीक्स जो है भगवान के भक्त थे, और कई ग्रीक्स ऐसे थे जो भगवान की भक्ति के बारे में जानते थे, और उसके बारे में उन्होंने रिकॉर्ड किया है अपने किताबों में। जैसे ये एक किताब है जिसका नाम है इंडिका। कितने लोग ने सुना है इस किताब के बारे में, इंडिका? राइटर का नाम है मेगास्थेनिस। मेगास्थेनिस 2300 साल पुराना। मेगास्थेनिस अपनी किताब में लिख रहा है, भारत में, मतलब सॉरी, भारत तो वर्ड यूज नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है इन इंडिका। इंडिका मतलब ये देश का नाम था इंडिका, फिर वहां से बन गया इंडिया। देखो कितने बार मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिका है, इंडिका लैंड, लैंड ऑफ इंडिका में एक राजा है, बहुत फेमस है, प्रोमिनेंट है, जिसका नाम है सैंद्रोकोटोस। एनी गेस कौन है सैंद्रोकोटोस? जी, नहीं, सैंद्रोकोटोस। हाँ, ट्राई करिए, सैंद्रोकोटस कौन है? हाँ, चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता नाम को आप मिस प्रोनाउंस करो, चंद्रगुप्ता। सैंद्रोकोटस, सैंद्रोकोटस राजा के यहाँ पे मैं रह रहा हूं। अब ये तो साइड डिटेल है, मेन डिटेल क्या है? वो बता रहा है कि भारत में एक शहर है, मतलब इंडिका में एक शहर है जिसका नाम है मेथोरा। कौन सा शहर है? कॉन्फिडेंट है नहीं है? मेथोरा क्या हो सकता है? राइट, मेथोरा, मथुरा।
अभी अभी यू हैव टू बी ऑन योर टोस। अभी अभी आपका लिसनिंग स्किल्स एंड इंटेलिजेंस स्किल्स सब हम टेस्ट करने वाले हैं अभी। मेथुरा नाम का शहर था, ठीक है। मेथुरा नाम के शहर में एक नदी बह रही है जिसका नाम है जोबारेस। जमुना कैसे जोबारेस हो गई? राइट, यमुना, जमुना, जोबारेस। ठीक है, जैसे गंगा जो है, गंगा को ये लोग क्या कर देते? गैंजीस। अब विदेश में जाओ, वेर यू आर फ्रॉम? इंडिया। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन योर कंट्री? गैंजीस। सुंदर नाम है, गंगा बोल दो, नहीं गैंजीस। तो वैसे यमुना जो है, यमुना जमुना बन गई जोबारस। मेथुरा नाम के शहर में जोबारस नदी बह रही है, ये बता रहा है। अब और आपको टफ करने वाला हूं क्वेश्चंस। जोबारस बह रही है, मेथुरा नाम का शहर है। मथुरा में बहती है ना, मथुरा में बहती है जमुना, ठीक है। इस शहर में एक वंश है, एक लोग है, एक ट्राइब है जिसका नाम है सौरसेनॉय। वाह, वेरी गुड, शूरसेन, परफेक्ट। शौरसेन शब्द जो है, शौरसेन, इसको इसने क्या कर दिया? सौरसेनॉय, सौरसेनॉय। अभी शूरसेन वंश कौन है बताइए? यदुस, यादवस, यादव थे। और यादव जो है कई ब्रांचेस हैं, बट इन्होंने शूरसेन वंश के यादव क्यों वहां पे रह रहे हैं? बिकॉज वो भगवान कृष्ण के डिसेंडेंट्स हैं, कृष्ण के डिसेंडेंट्स, वज्रनाभ के लाइन में जो आ रहे हैं वो वहां पे रह रहे हैं, इसीलिए अपने को शूरसेन वंश करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं। शूरसेन वंशी यादवास वहां पे रह रहे हैं क्योंकि यादवास के भी अनेकों ब्रांचेस हैं। शूरसेनी वंशी यादवास आर स्टेइंग इन मेथोरा। अभी सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आने वाला है। मेथुरा नाम के शहर में जोबारिस नाम की नदी बह रही है। शूरसेन वंश के लोग एक व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं जिसका नाम है, हा? जिसका नाम है, इसका नाम है हेराक्लेस। हेराक्लेस। ट्राई कर लो, जितना ट्राई करना है ट्राई कर लो। यस, हेराक्लेस। क्या हो सकता है? हेराक्लेस, बता दो। हरिकेशव, वाह। सो कमिंग टू द आंसर, हेराक्लेस क्या है? हेराक्लेस इज, ये देखो आप, हरि जो कुल के ईश है। किस कुल के ईश? किस कुल के ईश है? यहां पे क्या यादव मेंशन है? सौरसेन, शूरसेन। हरि कुलईश सौरसेना, मतलब हरि जो शूरसेन कुल के ईश है, जिनकी पूजा मथुरा में हो रही है जहां पे जोबारिस नदी बह रही है। मेक सेंस? हरिकुलिश सुंदर नाम है, हरिकुलिश सौरसेना। हेराक्लेस सौरसेनॉय, हरिकुलिश सौरसेना, हेराक्लेस सौरसेनॉय, हेराक्लेस, हेराक्लेस, ठीक है। और एक नदी का और एक शहर का भी नाम बता रहा है जिसका नाम है क्लेसबोरा। क्लेसबोरा, अभी तक डिकोड किसी ने किया नहीं है वो शहर का नाम, बट कई स्कॉलर्स का मानना है कि ये क्या हो सकता है? क्लेसबोरा। बोरा तो क्लियर है, बोरा क्या है, मतलब बोरा मत समझना। क्लेसबोरा, पूरा, पूरा। क्लेस, कृष्णा, मोस्ट प्रोबेबली कृष्णपुरा नाम का कोई शहर हुआ होगा जो बन गया क्लेसबोरा। कृष्णपुरा, क्लेसबोरा, ठीक है। अभी ये हेराक्लेस जो है, अभी इंटरेस्टिंग ये चीज है कि लास्ट में क्वेश्चंस एक लिख लेना आप, क्वेश्चंस लिख के रख लो, लास्ट में पूछ लो। इंटरेस्टिंग ये चीज है कि ग्रीक्स के बाद पास भी एक गॉड था जिसका नाम था हेराक्लेस। हेराक्लेस, वो हेराक्लेस यूके में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में बन जाता है हरक्यूलिस। हरक्यूलिस, अभी हरक्यूलिस क्या है? ग्रीक हेराक्लेस का डेरिवेशन है। अभी ग्रीक हेराक्लेस और भारत का हरिकुलिस का बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं, नाम भी सिमिलर है। तो ये ग्रीक ट्रैवलर बाहर से जब आ रहा है वो सोच रहा है मे बी हमारे हेराक्लेस की पूजा कर रहे हैं लोग, बट ये
उनके हेराक्लेस नहीं थे। अब बताओ कहाँ पे एविडेंस है कि ग्रीक गॉड हेराक्लेस की पूजा होती थी भारत में? बिल्कुल नहीं है, राइट? सो ये देखो इंटरेस्टिंगली, हाँ, ये इंडियन हरी कुलिश और ये ग्रीक हेराक्लेस, ये किसके ऊपर डांस कर रहा है? कालिया के ऊपर। और ये हेराक्लेस है, चाइल्ड हेराक्लेस ग्रीक कल्चर में। ये किसको डोमिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है? इसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा मतलब क्या? पानी। कालिया कहाँ पे रहता था? पानी में। तो सिमिलैरिटीज, लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन ग्रीक कल्चर एंड इंडियन कल्चर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, जिसमें हम लिटरेचर का एंटिक्विटी मतलब लिटरेचर का प्राचीनता देखने वाले हैं। बिफोर वी प्रोसीड, थोड़ा हम मूड को थोड़ा एक्साइट करते हैं या डाइल्यूट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हिल रहे हैं, थोड़ा बहुत इंटेंस हो गया हिस्ट्री भाई आज। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू से समथिंग, 1-2 मिनट का हम शेयरिंग सुनते हैं या कुछ क्वेश्चन पूछ 1-2 मिनट के लिए, थोड़ा मोर रिलैक्स हो जाए, देन वी एंटर इनटू द नेक्स्ट इंटेंस टॉपिक। यस। What is the acceptance of these proofs in general in scholarly committee or scholarly people? How do they accept those proofs and all these things? एक्सेप्टेड है। So, Indian forum besides archaeological surveys. आप मेरा एक रिसर्च सेमिनार है जिस कॉल्ड हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऑफ महाभारत, एक सेमिनार है, पॉडकास्ट आप नहीं, प्रेजेंटेशन एक है। इट इज़ प्रेजेंटेड इन संगम टॉक्स। इट इज़ द नंबर 1 यूट्यूब चैनल फॉर स्कॉलर्स, इंडियन स्कॉलर्स। वहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो। एंड आई गेट कीप इन्विटेशन आई कीप गेटिंग इन IITs एंड सेवरल टॉप यूनिवर्सिटीज़ मुझे बुलाते हैं। एंड सो फार आई हैव नॉट सीन इवन वन प्रोफेसर और एनीवन क्रिटिक दिस। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग आपको इंसिडेंट मैं बताऊं, आइजर पता है ना आपको? IISER पुणे में है, भोपाल में है। भोपाल में मैं जब प्रेजेंटेशन के लिए गया था, वहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं उनसे परमिशन लेने के लिए गए थे कि हम महाभारत के बारे में एक सेमिनार कर दें। पर उन्होंने मुझे क्या किया पता है? सीधा मुझे हॉटस्पॉट पे डाल दिया। कैसे? ही ब्रॉट 10 PhD स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, PhD प्रोफेसर्स। एक बुद्धिस्ट है, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है, एक श्री वैष्णव है, एक शैवा है, एक कट्टर सनातनी है, एक एथिस्ट है। सब टाइप के, सब फ्लेवर, मतलब सब फ्लेवर दे सामने बैठे हैं, ऐसे राउंड टेबल में बैठे हैं, हर कोई सवाल पूछ रहा है। पहले बोले आप प्रेजेंट करो, मैंने प्रेजेंट कर दिया, 20-25 मिनट में मेरा प्रेजेंटेशन हो गया। फिर 40-45 मिनट के लिए क्वेश्चन, रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया। ऐसे बोल रहे हो, आर्कियोलॉजी, इंस्क्रिप्शन, डेटिंग, एस्ट्रोनॉमी, टन 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 चलता गया। लास्ट में एट द एंड सब शांत हो गए। तो रजिस्ट्रार ने पूछा, यू आर ऑल एक्सेप्टिंग हिज थीसिस, द वे ही इज प्रेजेंटिंग एंड हिज कॉन्सेप्ट, हिज नोशन? सब ने ओके किया, सब ने ओके किया। सब ने बोला कि हाँ हम सेटिस्फाइड है इनके एक्सप्लेनेशन से, इनके रिसर्च मेथोडोलॉजी से, इनके पॉइंट से हम सेटिस्फाइड है। तो हर कोई प्रोफेसर ने बुक भी लिया और उन्होंने मुझे वहाँ पे एक बहुत प्राचीन एक स्टैचू गिफ्ट भी किया, 1000 साल पुराना स्टैचू। बोला कि आप रख लो, आपके लिए मायने देता है। सो दे दिया उन्होंने। एक स्टैचू था जो एक प्राचीन अप्सरा का, स्वर्ग की एक अप्सरा थी, उसका एक स्टैचू दिया। उसके हाथ पैर तोड़े हुए, इन्वेजन्स में उसके हाथ पैर तोड़ दिए, बट बहुत सुंदर है देखने में, वे इट इज कार्व्ड, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुली डन। तो उन्होंने गिफ्ट किया। सो वैसे मैं एकेडमिकली स्पीकिंग इट इज़ वेरी रेस्पेक्टेड जहाँ पे मैं जाता हूँ। इनफैक्ट आई इवन गॉट इन्विटेशन। ये बुक पढ़ के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हिंदू डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर विघ्नेश्वरन, ही इज़ ऑल्सो माई गुड फ्रेंड, तो ही बिकेम वेरी इम्प्रेस्ड। ही सेड आप कब आ रहे हो बताओ, कैम्ब्रिज में एक सेमिनार करवा देंगे आपके लिए। तो एकेडमिकली बहुत एक्सेप्टेड है। A quick question here about we're talking about the name India Yeah. because that's always a question for me. When did this country actually got the name India? 2000 years old. So Indica, Greeks Indica were called. 2300 years old. So how did this name India came? Ptolemy and later Greek writers इंडिका को further mispronounce करते हैं। But there's no मतलब reference of उनको पेट नहीं India. भरा, इंडिका मिसप्रोनाउंस Correct. किया हुआ और उसको मिसप्रोनाउंस करना है तो No, कर but the दिया इंडिया। ancient name, if it was Bharat, Yeah. how did it become Indica or India? भारत was there, but you see सप्त सिंधु,
सप्त सिंधु जो है उसमें सप्त हटा दीजिए, सिंधु, सप्त सिंधु बन गया हप्ता हिंदू, हप्ता को हटा दीजिए, हिंदू, हिंदू, इंडू, इंडी, इंडिका, इंडिया. Now, this is something is credited to Afghanis, Yeah, and their culture and tradition is not even 2000 years old, which is 1600 years old. yeah. So then, how 2000 years ago also we were called as India or Indica something? Yes, because they used to call this region based on these 7 rivers, Sapta Sindhu. ऋग्वेद में आप देखेंगे, ऋग्वेद says that the original homeland of the Aryans is Sapta Sindhu. So that's why this identification was based on these 7 rivers. हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, कश्मीर एंड ऑल दिस रीजन्स में जो 7 रिवर्स फ्लो करते हैं, अभी भी करते हैं, तो उसके बेसिस पे नाम इस रीजन का दिया गया. भारत वर्ड क्यों कम यूज किया जाता था? बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ कल्चरल नेम. विदेशी जो आ रहा है, ही डजंट लाइक टू यूज द वर्ड भारत, ही लाइक्स टू मोर टू कॉल एज सप्त सिंधु रीजन, क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा था. ये कल्चरल इंपॉर्टेंस है, ये ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है. तो एज अ ट्रैवलर फॉर हिम मोर सिग्निफिकेंट टू यूज ए ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दैन अ कल्चरल आइडेंटिफिकेशन या अ स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन या जेनियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन. उसको प्रेफर नहीं करता था वो, ये प्रेफर करते थे. दैट्स व्हाई सप्त सिंधु, हप्त हिंदू, 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 इंडू, इंडिका, इंडिया. So the history of the name India goes back up to 2000 years. 2000 So years. we have The some- earliest reference for the word India is from the Greek writers after the period of Megasthenes. Because interesting, Christopher Columbus went in search of India. Yes. So it means there must be something about India which they Yes, knew. So that's yes, coming from yes. so long. Another thing in regards to this, we're talking about this part of history. We began with Ayati. That's a Satya Yuga period. And now we're talking about, so of course, like this, I don't know what you call those Brahmanas and Kshatriyas, the names which are Dudito, whatever names Yeah, were given. yeah. So those references were given from what time? This is around pre-Mahabharata period when this disintegration started happening. These Vamshas So we ha- started migrating further, far Okay. away. Okay. Because Srila Prabhupada ji, while describing the Kalivan pastime, he mentions he came from Greece. And he said he was the first Yavana or Malecha who attacked Krishna. And he said he came from Greece, like that. And when we talk about Russia, we say Rishi Pradesh. Yeah. Many sages would travel. And particularly the credit is given post Mahabharata war when the disintegration actually happened. So the point is, people of the rest of the world would be living from the time of Satya Yuga. Yes. Of course, we don't have all that history. I'm going to come to that point of geographical, analysis, geographical positioning and Janapadas of Mahabharata. और वो आने वाला है. क्योंकि रामायण में एक inscription आता है, we talk about that, when Sugriva asks his Vanasena to go. he Yes, said- yes. पूरा geography mentioned है. Correct. So go to that trident of Peru, like those references. Okay. And one last thing, history is always controversial and is always intriguing. Last 1,000 years of history is still available. Yes. Let's say Shankaracharya onwards, there are a lot of things which are available. Now you talk about 2,000 years ago, 2024 years ago, Jesus. Something is mentioned around that time. We talk about 2,500 years ago, Buddha. Something is mentioned about that time, up to the Ashoka era. Let's say 500 years later, after that. But what seems to be missing, at least I haven't found much for my own reading, is 1,000 years prior to Shankara. Because all of our parampara, what we know right now, acharyas, they are right after Shankaracharya, which means 900, 800, 700, 600, 500. And if you go to Rajasthan, you dig out some historical books also. They do mention about the names of the kings who were ruling before the first invaders started coming in 1000 era, like that. But that history is just not mentioned anywhere. Is there something you have found in your studies, particularly 1,000 years and before, and between this 2000 and 1000? Because that's the time Abrahamic religion took birth. Yeah. And that's the time, if you know of any history, is of European history. Much not has been discussed or written in the books about our history. Yeah. And Srimad Bhagavatam goes up to Ashoka. So there's a missing history of 1,500 years approximately. It's actually, I have to acknowledge Prabhuji, because the kind of questions which I am getting from him, I have not faced from any other ISKCON devotee. 1,500 जो point है, बहुत ही तगड़ा point है. मतलब उन्होंने seriously इस पे बहुत study किया है. Because 1,500 का जो gap है, वो बहुत ही एक बड़ा missing link है, जो कई लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं. बट 1,500 का एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि जब मेगास्थेनिस भारत के अंदर आ रहा है, मेगास्थेनिस इज रेफरिंग दैट ही इज स्टेइंग इन द कोर्ट ऑफ अ किंग नेम सैंद्रकोटस. सही है. सो सैंद्रकोटस जो है, ही इज चंद्रगुप्ता.
Generally, people say it is Chandragupta Maurya, but actually it is not so. It is Chandragupta of the Gupta dynasty. हाँ, मौर्य जो है उससे भी पहले है. क्यों? Because according to the Puranas, the gap between Mahabharat war and Chandragupta Maurya is 1600 years, which means अगर महाभारत 5000 साल पुराना है तो चंद्रगुप्त मौर्य अराउंड 3500 years पहले आए, नॉट 2300 years. तो इधर 1500 years और का जो गैप है यहाँ पे एक्सप्लेन होता है. बिकॉज ये जो शीट एंकर है जो मिस प्रोनाउंसिएशन को, सैंद्रकोटस इज अ मिस प्रोनाउंसिएशन, चंद्रगुप्ता को हमने मौर्य बना दिया तो हमें पूरा जो हिस्ट्री है ओवर क्राउडिंग हो जाता है. अभी फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे एक रूम है, ठीक है, इस रूम में 10 लोग बैठ सकते हैं, इस रूम में 10 लोग बैठ सकते हैं. मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आदमी को बिठा दिया, यहाँ पे मैंने 19 लोगों को बिठा दिया, तो यहाँ पे हो गया ओवर क्राउडिंग, वहां पे हो गया अंडर क्राउडिंग. हमारे भारत हिस्ट्री में यही हाल है. चंद्रगुप्ता के पीरियड के बाद सैंद्रकोटस, चंद्रगुप्ता ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, इसके बाद ओवर क्राउडिंग हो रहा है. बहुत सारे राजा है, सडनली इतने सारे राजा, हर कोई आया राजा, यहाँ पे राजा 5-10 साल में नए नए राजा निकल रहे हैं. हिस्ट्री टेक्स्ट बुक आप देखेंगे ना, बहुत सारे राजाओं का हिस्ट्री मेंशन्ड है. बुद्धा के पहले तो पूरा साइलेंट है. मतलब ऐसे हो गया सडनली, हम आदिवासी थे, कुछ नहीं था, सडनली दिमाग की बत्ती जल गई, अभी सिविलाइजेशन क्रिएट कर लो. ये प्रॉब्लम है बिकॉज ये मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द शीट एंकर. जो शीट एंकर इन्होंने गलत आइडेंटिफाई किया है और जानबूझ के गलत आइडेंटिफाई किया है ताकि हमारे हिस्ट्री को शॉर्टन करें. जो 1300 या 1500 ऑड ईयर्स है इसको खा लिया है लिटरली. और इससे इसका एक तरीका है ओवर क्राउडिंग. सब मैनिपुलेशन करना है. क्यों? बिकॉज हमें हमें अचीव करना है ना वो टारगेट, कि ये चंद्रगुप्ता मौर्य ही है, इसको प्रूव करना है, गलत शीट एंकर एस्टैब्लिश करना है, तो ये करना है हमें. दैट इज हाउ इट इज डन. ये मैं एक पहलू आपको बता रहा हूँ, बट इसके मल्टीपल एंगल्स हैं. अगर डीप में जाएंगे तो आपको पूरा बता सकता हूँ कि कैसे 1300-1500 years को इन लोगों ने खाया है. No, this is historical perspective. I do Yeah, agree. yeah. Acknowledge that. Yeah. Very interesting is even in the Vaishnava theology, the references are not there. You know, there's a history book written about the life of Vaishnava acharyas prior to Madhvacharya in the Madhva Parampara. Even there are 8 chapters. In the last chapter, they talk about Shankaracharya. The history of Vaishnava acharyas before Madhvacharya, the history written during the time of Madhvacharya, it only talks about up to the period of Shankaracharya. And that how because of post Shankaracharya, the Mayavadis became very fanatic and radicals. So all the Vaishnava acharyas had to practice their devotion in hidden. But interestingly, even there, prior to Shankaracharya, no name is mentioned. Yeah. So if you go back, Yes, in fact, I'll answer to this. look back into the history, we don't know any name prior to 1000 years. Yeah. अगर आप तमिल संगम लिटरेचर स्टडी करेंगे, तमिल संगम लिटरेचर 2400 years old लिटरेचर, वहाँ पे ये लिखा गया है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, द लिटरेचर इज कॉल्ड एज पेरुम्पानाट्टुपड़े. एग्जैक्टली मैं आपको बुक देख के बता दूंगा. इट सेज दैट refers to the Tridanda of the Vaishnava sannyasi. Tridanda, because Ekadandi sannyasi is not a Vaishnava. Tridandi sannyasi is a Vaishnava. So Tridanda sannyasa का concept जो है वहाँ पे mentioned है, वहाँ पे mentioned है. So which means Vaishnavism was prominent. One point. Second point, Nandi Sutra, nearly 2000-year-old Jain literature. उसमें लिखा गया है कि a devout Jain should not read Purana Bhagavatam, श्रीमद् भागवतम. अनदर पॉइंट. थर्ड पॉइंट, जैसे आपको दिखाया मैंने इंस्क्रिप्शन, अपने को भागवत बोल रहा है 2300 साल पुराना. अनदर पॉइंट, 2200 साल पुराना सिक्का जो है अफगानिस्तान से, वो अपने को अगाथोक्लिस, उसने राइट में अगाथोक्लिस नाम लिखा है, बट कृष्णा और बलराम को रेस्पेक्टेड पोजीशन दिया है. अगेन प्रूफ ऑफ वैष्णविज्म, राइट. या आचार्यस का क्या है, या आचार्यस का क्या है कि आचार्यस जनरली बिफोर दिस पीरियड हैव केप्ट themselves not much in limelight. They have not preferred to do that due to yeah. That's kind of understanding which people have. But Vaishnavism per se was there, and sannyasis and acharyas were also there. Alvars were there. Yeah. So इसको उन लोगों ने ज़्यादा अपने को, maybe they were very humble to even want to describe themselves or show themselves, but they were there. Therefore, I was making a point at the beginning. Interestingly, none of our acharyas spent any time in the history. Yeah. You know, who could be a bigger scholar than Jiva Goswami? None of them touched anything about history. They didn't even touch about Mahabharata. Because by that time, Mahabharata was so diluted. Yeah. You have a North Indian version, South Indian version. I read many versions. I'm confused what Mahabharata I'm reading now. Just to add about the point of
Dilution. Mahabharata is not actually diluted. To give you a context, what is the Mahabharata facing is that we have few chapters, एक आध दो, क्योंकि you see it has 1 lakh shlokas. उसमें आप मान के चलो there are hundreds and hundreds of chapters. उसमें कहाँ पे एक चैप्टर यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे एक चैप्टर कम हो गया, बट around 95% of the text is same throughout the entire Indian subcontinent. उसमें कोई difference नहीं है. I mean, what I found up to the 10th Parva Yeah. is still acknowledged. Yeah. After 11th Parva, there's a lot of changes. And therefore, Madhvacharya, he wrote up to 10th Parva in his writing, where he wrote 5,000 verses. He didn't go beyond that. And he said, because the surety is not there. To give an example, our marriage of, what's the name? Our no, not marriage, Shantanu. Vyasadev, not Vyasadev, kya naam hai? Vyasadevji's father? Parashar Muni meeting with Satyavati. In South Indian version, Brahmaji got them married. And in North Indian version that we know, I'm just calling for the sake of differentiation, we know how Parashar Muni met Satyavati and how, they had that, one of the marriage system that it was there. And then it is asked why South India they have presented it differently, because in that culture they could not have accepted the father of Vyasadeva, who is the person who wrote all the scriptures. He was born through this kind of a marriage where there was no marriage. So they added Brahmaji came, got them married. So these kind of things, I mean, of course, within our bhakti circle doesn't create doubt. Yeah. But this is a thing which people bring from outside, if in case they have read something. Right. So I don't know. I mean, you are into a very difficult genre where you will face a lot of conflicting questions. Yeah. We do Like face. this thing. Those who have read, they'll ask you left and right such kind of things. But fine, good. I mean, I really appreciate when you get more details about this. I'm really interested to know, because this Yeah, is yeah, I like do a have details about it. empty space It's, about it's, acharyas. it's explainable based on the manuscript analysis of all the various regional manuscripts. What we found is that we have got by the hard work of Bhandarkar Oriental Research Institute. You must be aware of that. So they have created this, what is called as a critical edition of the Mahabharata. You must be also aware of that. So that critical edition, solves that issue of, that there are differences between the north and the south. Or differences bhi agar aap dekhenge, it's so minute and minuscule that it's probably, it's like an side detail which is being touched upon and probably differed with other manuscripts. So I think in the context of the war itself and context of the story, the narrative itself, it doesn't make much of a difference. Yeah. Yeah. I'm just going to come to that in the Vedas section. We are going to touch the Vedas and how they are substantiating the Mahabharata. But I think we have very less time. 7 minutes more. Half presentation hua hai. Okay. Right. Questions we can do personally probably. Right. Okay. So quickly अभी क्या है, अभी मैराथन शुरू हो चुका है, हमें कंप्लीट करना है. सो पॉइंट इज कि अगर आपसे कोई पूछे अरे महाभारत तो 1000 साल पुराना है, आपको पता है सबसे प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट जो है ताड़पत्र जो महाभारत का है मात्र 1000 साल पुराना है. सो देयरफॉर महाभारत इज 1000 साल पुराना. बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आपको आ सकते हैं. तो तब यू कैन शो दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट. ये 2000 साल पुराना ग्रीक राइटर है जिसका नाम है डियन. वो बता रहा है इंडियंस के पास एक इलियड की तरह एक एपिक था जो 100,000 या 1 लाख श्लोकास का था, और 1 लाख श्लोकास का एपिक पूरी दुनिया में एक ही है, वो है महाभारत. ठीक है. ऐसे वॉर हुआ था पोरस एंड अलेक्जेंडर का, पता है पोरस एंड अलेक्जेंडर का वॉर हो रहा है, तो एक फोटो लेके जा रहे हैं पोरस के आर्मी में एक फोटो लेके जा रहे हैं. फोटो पता है किसका है? हेराक्लेस. अभी आप बताओ ये ग्रीक हेराक्लेस है या इंडियन हेराक्लेस है? क्यों ग्रीक का क्यों नहीं? अलेक्जेंडर कहां से आया था? आप बताओ. इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडियन आर्मी का जनरल जिन्ना का फोटो लेके जाएगा? समझ रहे नहीं समझ रहे? इंडियन आर्मी जनरल जिन्ना का फोटो लेके जाएगा? नहीं जाएगा. ऑब्वियसली इंडियन हेराक्लेस है, हरिकुलिश है, कृष्णा है. ठीक है. ट्रैवलर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स, अनेकों ट्रैवलर्स हैं. युआन चुआंग, फाहियान, अनेकों ट्रैवलर्स हैं. अनेकों ट्रैवलर्स जिन्होंने महाभारत के कृष्णा के रेफरेंस दिए. और इवन अकबर के मुगल राइटर्स, अकबर के पीरियड में अबू फाजल नाम का एक राइटर था, तो वो बता रहा है कि यहाँ पे जो हुमायूं का टोम्ब देख रहे हो,
इसी टॉम में 4500 साल पहले महाराज युधिष्ठिर का शासन हुआ करता था। कौन बोल रहा है? मुगल पीरियड राइटर्स बता रहे हैं चीज। सो स्ट्रोमेटिस नाम का ग्रीक ट्रैवलर बता रहा है कि भारतीय जो है ब्राह्मण जो है ब्राह्मणस, ब्राह्मण का नाम है ब्राह्मणस, ब्राह्मणा जो है वो हेराक्लिस की पूजा करते हैं। बट आप देखो अंग्रेज तो हमने बताया कि इंडियंस ओनली प्रोड्यूस मिथोलॉजी, हमारा तो हिस्ट्री हो ही नहीं सकता है। सो ये महाभारत का पूरा कॉन्टेक्स्ट है। महाभारत में इतने सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस है। दुनिया का सबसे प्राचीन है, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल लिटरेचर जो है वो है महाभारत। इतने सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर्ड है। तो अगर हम लिटरेचर को डिवाइड करें, भारत के प्राचीन लिटरेचर को दो कैटेगरी में, श्रुति एंड स्मृति। अभी इंटरेस्टिंग ये है, स्मृति में आता है महाभारत, ऑल्दो स्मृति में आता है, स्टिल उसका हिस्ट्री जो है श्रुति से प्रूवन है, वेदों में उसका रेफरेंस है। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखिए, भारत एंड महाभारत किताब जो है अश्वलायन गृह सूत्रा, गृह सूत्रास क्या होता है? देयर एडेंडम्स, वेद के एडेंडम्स हैं। तो उसमें मेंशन्ड है दो किताब जो गृहस्थ पढ़ते थे अपने घर में, भारत एंड महाभारत, ठीक है। और कातक संहिता, यजुर्वेद का कातक संहिता में धृतराष्ट्र का नाम है। देवपी एंड शंतनु, शंतनु बताया आपको, उनका वर्णन है ऋग्वेद में। देव की पुत्र कृष्ण, इनका वर्णन है चांदोग्य उपनिषद में। निरुक्ता में अक्रूर का वर्णन है, राइट। तो मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया, ये जो एक एक है ना, एक एक का मैंने पूरा स्टडी किया है। कुछ कुछ का स्टडी करने के लिए 1-2 महीने लग गए पूरा डेडिकेट करके। तो ये धृतराष्ट्र है, ये महाभारत का धृतराष्ट्र वहां पे, वेदों का धृतराष्ट्र। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं वेद का धृतराष्ट्र अलग है, महाभारत का धृतराष्ट्र अलग है, उनके लिए जवाब है, देखो ये भी विचित्र वीर्य का बेटा, वो भी विचित्र वीर्य का बेटा, ये कुरु राजा है, वो भी कुरु राजा है, सब सिमिलर है, कैसे अलग हो सकता है? एक ही व्यक्ति है। और बुद्धिस्ट लिटरेचर में अनेकों अनेकों बुद्धिस्ट लिटरेचर में, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यही था, बुद्धिस्ट लिटरेचर, इनके लिटरेचर में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रेफरेंसेस फॉर महाभारत एंड कृष्णा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये 2400 साल पुराना है, इसमें रेफरेंसेस है कृष्णा के एंड महाभारत के। दुनिया के सबसे प्राचीन केव पेंटिंग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा 2300 साल पुराने। यहाँ पे देखिए हाथ में क्या है, क्या है ये, हाथ में क्या है, और ये कौन है, हाथ में क्या पकड़ी है? यस, अम्ब्रेला। सो वर्ल्ड्स अर्लीस्ट जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रोटोटाइप केव पेंटिंग्स में, गुफा चित्र, मध्य प्रदेश। ये दुनिया के सबसे प्राचीन कृष्ण बलराम सुभद्रा के स्टैच्यूज। तो अनेकों पुराणों में तो रेफरेंस है ही है, और तमिल संगम लिटरेचर में इतने सारे रेफरेंसेस हैं कृष्णा के, महाभारत के। ये लोग बोलते हैं अरे हम अलग हैं, हमें नॉर्थ इंडियन से कोई लेना देना नहीं है, ये आर्यंस हैं, हम द्रविडियंस हैं। भाई आपके लिटरेचर में तो पूरा आपका हिस्ट्री इंटरट्वाइंड है महाभारत से, कृष्णा से अलग हो ही नहीं सकता है। और ऐसे लिटरेचर जैसे पाणिनि, पतंजलि, सुश्रुत, अनेकों ऐसे लिटरेचर्स हैं, इन्होंने भी महाभारत के वर्णन दिए हैं। अब इनको जरूरत क्या है? सर्जरी कर रहा है सुश्रुत, रेफरेंस दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था, वो कल्चर था, वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री था, कोई उसको डाउट नहीं करता था। सो पूरे महाभारत का जो मैप है, मैंने यहाँ पे मैप किया है, टोटल महाभारत युद्ध में 26 ऑन द पांडवा साइड, 45 ऑन द कौरव साइड, जो किंगडम्स थे। तो उसमें अनडिसाइफर्ड 287 किंगडम्स हैं आज दिन तक, किंगडम्स या ट्राइब्स हैं जिनको आज भी हम ट्रेस नहीं कर पा रहे। क्यों? हिस्ट्री खत्म हो गया, एब्रप्ट एंडिंग है उनका। जनपद इज जनपद wherever the people of a particular kingdom are moving and keeping their pada, जनपद। क्योंकि आप एक राज्य के हैं, ज्यादा उस राज्य पे जाओगे नहीं, काम से जा सकते हो, बट आपके मूवमेंट्स आपके जनपद के अंदर ही, मतलब आपके राज्य के अंदर ही होगा। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज जनपद। 363 ट्राइब्स और जनपदस, सम ऑफ देम आर ट्राइब्स, सम ऑफ देम आर जनपदस, बेसिकली पीपल ग्रुप्स। 363 पीपल ग्रुप्स मेंशन्ड है महाभारत में, 100 से भी लेस ही डिसाइफर हुआ है हिस्ट्री। तो मैंने मैप किया है कई जनपदस को, आप देख सकते हो यहाँ पे मैप्ड है। सो कमिंग टू द फाइनल पोर्शन विद जस्ट 1 मिनट ऑन द क्लॉक। और कितना टाइम ले सकते हैं मुझे? 10-15 मिनट ले सकते हैं? मना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कंटिन्यू करें? अभी हम पानी के अंदर जाने वाले हैं, द्वारका। सो द्वारका में क्या हुआ था? द्वारका पता है आपको? फैसिनेटिंग चीज बता रहा हूँ। द्वारका जो है 20% भी एक्सकवेट नहीं हुआ है। जो पूरा द्वारका है उसका 20% भी एक्सकवेट नहीं हुआ है।
तो 1990s में इस पे काम हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने यहाँ पे काम किया और अनेकों साइट्स को उन्होंने लोकेट किया पानी के अंदर। तो ये जो है शेडेड पोर्शन आप देख रहे हो, इतना ही मैप हुआ है, इतना ही रिसर्च हुआ है, एक्सकवेट हुआ है द्वारकाधीश मंदिर के पास। और यहाँ पे ऊपर देखिए बेट द्वारका, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे छोटा, इतना ही एक्सकवेट हुआ है। ये मात्र 750 मीटर से भी कम है। द्वारका कितना बड़ा था। तो दैट इज द पोटेंशियल विच दिस कंट्री हैज इन टर्म्स ऑफ आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। ये देखिए इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं पानी के नीचे मैप्ड है, और उसके कुछ फोटोज, ये एंशियंट वॉल्स के फोटोज हैं दीवार के, राइट। एंड दिस इज दी, अगर हम उसको मैप करेंगे ऐसे आएगा पानी के नीचे। तो महाकच्छसपा सबसे फैसिनेटिंग है, ये इंस्क्रिप्शन सबसे फैसिनेटिंग है। एक इंस्क्रिप्शन नियरली 4000 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है। कितना? 4000 साल। तो एक जार है, जार समझ रहे हो, जार, एक जार है जो यज्ञ के लिए यूज किया जा रहा है, उसका एक फ्रैगमेंट है, टूटा हुआ फ्रैगमेंट मिला है, उसमें ये लिखा है महाकच्छसपः। इसको SR राव ने, जिन्होंने पानी के अंदर खुदाई निकाले ये चीज़ों को, उन्होंने इसको डिकोड किया है। तो वो बोल रहे हैं इसका अंडरस्टैंडिंग है महाकच्छसपः। बताओ अपह क्या है? पानी। महाकच्छसपः, हे समुद्र के देवता हमारी रक्षा करें, हे पानी की देवता हमारी रक्षा करें। अभी द्वारका में क्यों मिल रहा है ये चीज? यस, हाँ डूब गया था, पर द्वारका था कहाँ पे? पानी के बीचों बीच था ना। वारी दुर्गा, द्वारका का एक नाम था वारी दुर्गा, द फोर्ट विद इन द वाटर। वारी दुर्गा, पानी के अंदर फोर्ट, वारी दुर्गा। सो पानी के अंदर बीचों बीच बैठे हैं, हे समुद्र देवता हमारी रक्षा करें, हमें प्रोटेक्ट करें, कीप अस वेल। सो ये इंस्क्रिप्शन इतना क्रूशियल क्यों है? क्योंकि इट मैचेस विद द वर्जन ऑफ द महाभारत, विच इज कि वो पानी के बीचों बीच थे, और वेस्टर्न डायरेक्शन जो है, महाभारत सेज दैट द वेस्टर्न डायरेक्शन इज डेडिकेटेड फॉर वरुण देव। द्वारका किस डायरेक्शन में था? वेस्ट में था। द्वारका में वेस्टर्न डायरेक्शन में वरुण देव की पूजा होती थी, और पानी के बीचों बीच बैठे हैं तो प्लीज हमारी रक्षा करें, राइट। महाकच्छसपः। और ये कल्चर प्रूवन है कि समुद्र पानी देवता जो है उनकी पूजा, मतलब वरुण की जो पूजा है, बहुत प्रोमिनेंट था महाभारत पीरियड में द्वारका रीजन्स में। सो लिटरेचर जो लिखा हुआ एविडेंस है वो किससे मैच कर रहा है? नहीं, लिखा हुआ महाभारत में जो एविडेंस है लिखा हुआ, किससे मैच कर रहा है? पुरातत्व, आर्कियोलॉजी से मैच हो रहा है। उसके अलावा एक फैसिनेटिंग ये भी मिला है आर्कियोलॉजिकली कि पता नहीं ऐसे क्यों, ऐसे नहीं है, बट एनीवे आप पढ़ पा रहे हो तो ठीक है। दे वर यूजिंग सील्स एज आईडी कार्ड्स, लाइक आईडी कार्ड। आप सब लोग आईटी में काम करते होंगे, तो अंदर जब जाते हैं आईडी कार्ड रखते हैं, स्वैप दरवाजा खुल जाता है ना। तो प्राचीन पीरियड, महाभारत पीरियड में ये श्लोक है, देखिए, एक एव महाद्वारो, मतलब इसमें श्लोक का ये ट्रांसलेशन है कि एक ही द्वार बनाओ, जो भी अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है उसी द्वार से आना चाहिए, और जो भी अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है उसको सील दिखाना है, मुद्रा दिखाना है। और मुद्रा जो है स्पेशल मुद्रा है, ओनली द किंग कैन गेट दैट मुद्रा रेडी, साधारण कोई व्यक्ति बना नहीं सकता है। उस मुद्रा को दिखाने से आप अंदर जा सकते हो, बाहर आ सकते हो। क्या ये चीज आर्कियोलॉजी में प्रूव हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जीपी सिंह नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट है, तो वो बोल रहे हैं कि द्वारका रीजन में ऐसे सील्स थे जो आईडी पर्पस, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता था। इट कैन नॉट बी डिजाइन्ड बाय कॉमन मैन। सो कनेक्ट हो रहा है, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी कनेक्ट हो रहा है। तो कमिंग टू द वेरी वेरी लास्ट पॉइंट, विच इज दैट इंडिया का क्या पोटेंशियल, आप सुन के हैरान हो जाओगे। आप भारत में मेजॉरिटी कुछ हुआ ही नहीं है, खुदाई, रिसर्च, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी कुछ नहीं हुआ है। हमें बोला जाता था आर्य जो है मूल निवासी नहीं है, आर्य बाहर से आए हैं, आर्य विद्रोही हैं, आर्य क्रूर है, सही है, आर्य रथ में आ रहा है, आर्य जो है रथ, घोड़े और स्पोक्ड व्हील में जिसके स्पोक्स होते हैं, ये भारत में थे ही नहीं, आर्य लेके आया। मैक्स मुल्लर जो है वो बता रहा है।
कि जो चीज है ये अंदर लेके आ रहे हैं, क्या है? रथ, घोड़े और स्पोक्ड व्हील दे ब्रॉट। उसके पहले भारत में था नहीं ये चीज, मैक्स मुलर बता रहा है। बट मैक्स मुलर से पूछो कि कितने साल पहले आए थे आर्यंस, तो वो बताता है 3500 ईयर्स। उसके पहले भारत में रथ, घोड़े और स्पोक्ड व्हील नहीं थे। तो मेरा ये सवाल है, तो उसके पहले तो रथ घोड़े नहीं मिलने चाहिए आर्कियोलॉजी में, पुरातत्व में। अभी ये रथ कितने पुराने पता है? 4000 ईयर्स ओल्ड। सनौली चैरियट्स, समझ रहे हैं? चैरियट्स ऑफ सनौली, 4000 साल पुराने रथ, 4000 साल पुराने घोड़े के बोन्स, 4000 साल पुराने हेलमेट्स, वेपन्स, रिमेन्स ऑफ चैरियट्स, ब्यूरियल्स ऑफ दोस किंग्स, देयर वेपन्स, सब मिले सनौली इन बागपत डिस्ट्रिक्ट, यूपी। या 4000 ईयर ओल्ड चैरियट्स। बट हमें क्या बोला जाता है? 3500 साल पहले ही भारत में रथ आया था। आर्य जो है ना, बहुत बहुत ही बुरे लोग थे, बहुत ही बुरे लोग थे। भारत में आए, भारत में उन्होंने सब कल्चर मिटा दिया, सब मूल निवासी को मारा। Yeah, it is there. This is currently I think in Delhi. Exactly मुझे पता नहीं. I can get the information for you. Delhi में. Yeah. Preserving. Yeah. ठीक है, got the point. Now, ये पोटेंशियल है भारत में। ये देखिए, ये एक साइट है इन यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसका नाम है कॉपर गेट साइट। कॉपर गेट साइट में आप देखिए, एक ही जगह में 2000 साल पहले कुछ लोग रहते थे, उसी में 1800 साल के बाद पहले एक दूसरे लोग आए, उनके डिसेंडेंट्स। फिर 1500 साल के बाद, मतलब आज से 1500 साल पहले एक लोग ग्रुप आए थे। आज से 1300 साल पहले और एक ग्रुप लोग आए थे। 1000 साल पहले, 800 साल पहले, 700 साल, 500, 300, 0 आज। मतलब एक ही जगह पे मल्टीपल लेयर्स में मल्टीपल सिविलाइजेशंस का एविडेंस मिल रहा है। विच मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, कौन यहाँ पे शादीशुदा है, बच्चे हैं? हाँ, आप बताओ, आपका नाम क्या है? विक्रांतजीत, सही प्रोनाउंस करो। विक्रांतजीत जो है, आपके बेटे हैं? बेटी है, नाम? निमाई। हाँ, तो समझ लो इनकी बेटी है, उनके बच्चे हो रहे हैं, तो अभी ये बन गए दादाजी। अभी दादाजी क्या कर रहे हैं? वहाँ पे अपने बच्चों को रहने के लिए घर बना के दे रहे हैं। फिर उनके जो बच्चे हैं, मतलब आपके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, वो वहीं पे रह रहे हैं। उनका जो लैंड है ना, थोड़ा ऊपर रहेगा। क्यों? मिट्टी एक्यूमुलेट होता है, सिल्ट फॉर्म होता है, वो जो पुराने बिल्डिंग टूट जाते हैं, रबल्स बन जाते हैं, तो उसके ऊपर हम अलग नेक्स्ट लेवल बनाते हैं। तो ऐसे जैसे जैसे जनरेशन पास होता जाएगा, लेयर, लैंड का जो लेयर है, मतलब जो हाइट है, बढ़ता जाएगा। आपने देखा है ना, लैंड तो कभी कम नहीं होता है, बढ़ता है। रोड भी ऐसे बढ़ाते जाते हैं, क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज ग्रोइंग, राइट? सिल्ट फॉर्म होता है, या ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द रिवर्स, मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि लैंड का जो ये है लेवल है, बढ़ता है। तो विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम चीज़ें और नीचे जाने वाला है, इन अदर वर्ड्स, मतलब और अंदर रहेंगे। तो 2000 साल पुराना लेयर 40 फुट नीचे है अप्रॉक्सीमेटली। 5000 साल पुराना लेयर कितने नीचे होगा? समझ रहे? हमने तो पूरा खुदाई की नहीं है भारत में। क्या हमने पूरा खुदाई की? जहां पे महाभारत एंड कृष्णा के साइट्स है, सब जगह पे हमने साफ कर दिया, करके हमने पूरा डेप्थ में जाके रिसर्च किया नहीं। बट महाभारत मिथोलॉजी में बोल रहा हूँ, महाभारत मिथोलॉजी है। दिस इज द काइंड ऑफ स्कॉलरशिप अनफॉर्चुनेटली पीपल प्रोसेस। ठीक है, तो नेचर भी अपना काम नहीं छोड़ता है। ये तुर्की में एक कासल है, गजिनटाप कासल, 2000 साल पुराना कासल है। अब देखिए, ये अर्थक्वेक के पहले और ये अर्थक्वेक के बाद, लास्ट ईयर वाला जो अर्थक्वेक था। तो क्या पोटेंशियल है इस देश में? 90, एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट है, बहुत फेमस है, इसने बहुत सारे पिरामिड्स आइडेंटिफाई की है। ये बता रही है कि भारत जो है ट्रेशर हाउस है, ट्रेशर खजाना है ये कंट्री। मतलब रियल खजाना भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, रियल खजाना भी हो सकता है।
बट आप मान के चलो भगवान कृष्ण के पीरियड का कोई आपके हाथ में कोई वेपन मिल गया, कोई क्राउन मिल गया, कोई पॉटरी मिल गया, तो क्या खजाना कर के क्या करेगा? इससे ज्यादा बड़ा खजाना क्या है? सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन जाओगे, वर्ल्ड फेमस। तो ये पोटेंशियल है भारत में, इसीलिए मैं कई लोगों को इंस्पायर करता हूँ कि आप इसमें करियर लो। मैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, बच्चों को इंस्पायर करता हूँ कि इसको ध्यान दो, बहुत पोटेंशियल है, फ्यूचर में बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है। 90% भारत में अभी भी एक्सकेवेट नहीं हुआ है। 90% बहुत होता है, समझ रहे? 90% ऑफ इंडिया इज नॉट येट एक्सकेवेटेड। इधर दबा हुआ है, नहीं तो डूबा हुआ है। डूबा हुआ कहाँ पे? एग्जाम्पल द्वारका, मल्टीपल अदर प्लेसेस। डूबा हुआ है, नहीं तो दबा हुआ है। लोई बाजार में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब लोई बाजार, बताया कितने लोग गए वृंदावन? प्रैक्टिकल लोई बाजार सुना होगा ना आपने, राइट? जो भी नहीं भी गए, बहुत फेमस स्पॉट है। छह गोस्वामी का मंदिर भी उसी एरिया में, उसी आसपास है। बहुत ही प्राचीन एरिया है वो। कल्चरल हिस्टोरियंस थे हमारे 6 गोस्वामी, तो उनको पता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है उस रीजन का। वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के नीचे रिसर्च किया, खुदाई की, 3800 साल पुराने पोर्ट्रीज मिले। पोर्ट्रीज बहुत ही स्पेशल साइट है। और आप देखो लोई बाजार का जो एरिया है, मतलब जो मेन वृंदावन है, प्राचीन वृंदावन, यमुना ऐसे सीधा आती है, फिर ऐसे यू करके सीधा जाती है। परफेक्ट लैंड है काउहर्ड के लिए। तीनों साइड पानी है, तीनों साइड पानी है। तो आप देखो बहुत ही रीजंस होता है, भगवान जो भी करते हैं या हमारे प्राचीन पूर्वज जो भी करते हैं, बहुत रीजंस होता है वो क्यों कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई दे आर डूइंग, कारण होता है। सो ये पोटेंशियल है भारत का। एंड लास्ट पॉइंट है डेटिंग, महाभारत का डेटिंग। महाभारत की डेटिंग के लिए 400 से भी ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस हैं जो महाभारत के यूनानिमस सिंगल पॉइंटेड डेट को एस्टैब्लिश करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये जो है आइहोले इंस्क्रिप्शंस है ऑफ रवि कीर्ति। इसमें लिखा है when 30 and 3005 years besides joined with 700 years have passed since the Bharat War। मतलब बोल रहे हैं 3735 साल हुए हैं भारत वार होके, महाभारत वार होके, तब है हम इस इंस्क्रिप्शन को लिख रहे हैं। तो आप सोचोगे ठीक है भाई, मैं अभी इसका इंस्क्रिप्शन का डेट कैसे निकालूं? इंस्क्रिप्शन का डेट मेरे पास होगा तभी तो मैं महाभारत वॉर का डेट निकाल पाऊंगा। तो उसके लिए उन्होंने और एक एविडेंस दिया, इंस्क्रिप्शन में बताया कि ये महाभारत वॉर से इतने 3735 ईयर्स हुआ है, और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 556 ईयर्स आफ्टर शका काल, शका राजा, शालिवाहन शका एरा, एक एरा है 78 सी, 78 एडी जिसको बोलते हैं, वहां से शालिवाहन शका एरा शुरू होता है। तो वो सेकंड रेफरेंस पॉइंट बता रहे हैं कि शालिवाहन शका एरा से इतने साल हुए हैं, ये इंस्क्रिप्शन हम इस साल में कार्व कर रहे हैं। तो हमें शालिवाहन शका तो पता है 78 सी है, वहां से 556 ऐड करो तो आपको मिल जाएगा 634 ईयर ऑफ आइहोले इंस्क्रिप्शन, उस साल में वो लिखा हुआ है। यहां से आप 3735 ईयर्स पीछे जाओगे तो महाभारत वॉर का एग्जैक्ट ईयर मिलता है 3101 BCE। ये महाभारत युद्ध का एग्जैक्ट ईयर है अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शंस। तो इसीलिए एज हरे कृष्णा डिवोटीज, अगर लोग आपसे सवाल पूछे, जैसे मैं रैरली प्रभु जी जैसे कोई कई ब्रह्मचारी सन्यासी को भी देखा हूँ, इनके जैसे स्पेसिफिक इतना डिटेलिंग में वो ईयर पूछ रहे थे, जान रहे थे, ऐसे डिवोटीज जनरली जानते नहीं है इतना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कभी कोई पूछ रहा है महाभारत वॉर कब हुआ, कृष्ण कब आए थे, भगवत गीता कब बोला गया था, स्पेसिफिकली सीना फाड़ के बोलो 3101 BC, मतलब 5125 साल पहले। एग्जैक्ट ईयर बताओ ना, क्या दिक्कत है इंस्क्रिप्शंस में है। 400 से भी ज्यादा इंस्क्रिप्शन है। कुछ महाभारत वॉर को रेफर कर रहे हैं, कुछ युधिष्ठिर शका को रेफर कर रहे हैं, कुछ जो है कली एरा को रेफर कर रहे हैं। तीनों का एक ही ईयर है, 3101 BCE। ठीक है, तो हमारे इंस्क्रिप्शंस में मल्टीपल एराज मेंशन है, कली एरा, शालिवाहन शका एरा, विक्रम संवत, कोल्लम एरा एंड सो ऑन। एक एक एरा इंटरचेंजेबल है, मतलब इंटर वेरीफाइबल है। जिसको हमें पता है उसको रख के इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको पता है तो इसको रख के इसको वेरीफाई कर सकते हैं, राइट? सो दैट्स इट, द लास्ट पॉइंट। कल्चरल इसका इम्पैक्ट भारत में रहा है महाभारत का, ऑल द वे अप टिल आर्मीनिया। आर्मीनिया जो इराक के ऊपर है, वहां पे कृष्णा का 2000 साल पहले पुराना मंदिर था। 2000 साल पुराना मंदिर कृष्णा का आर्मीनिया में था, वहां तक कृष्णा एंड महाभारत का इन्फ्लुएंस था। और यहाँ पे जापान तक, कंबोडिया, ये कंबोडिया का मंदिर है, कंबोडिया में भीष्मा ऑन द बेड ऑफ एरोस, इंडोनेशिया पपेट डांस, चाइना का जो मैंने दिखाया ही था। तो ये सारे एविडेंस, इतने सारे कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च के बाद
inscription, cave paintings, Vedas, Puranas, Buddhist literature, Jain literature, Tamil literature, Greek literature, Chinese sources, द्वारका के आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, सारे 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 एविडेंसेस इस सिंगल किताब में कंपाइल है जो आज आपके सामने अवेलेबल है. सो विद दिस आई कंप्लीट माय प्रेजेंटेशन. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. This is 800 and 600. Two versions are there. आप 800 बोल दो. 800 बोल दो. If somebody wants 600. So, with this, I would call it as a brief presentation because history is vast and the amount of time Prabhu would have required to study from that perspective, although we have spent maybe 2 hours, but it's a brief presentation because history takes a lot of time to really study. Not study, but to verify because there are so many things, said by so many people and scholars like that. So, fantastic work. Primarily, this is of a great, great importance to those who just have got connected or those can get connected. It has a huge potential to bridge gap between the new audience and us, like this. His Grace Druttakrama Prabhu, Michael Kramer, 2010, he published a book by the name of Forbidden Archaeology. So he visited us at Columbus and he was making a very fantastic point. He spent more than 25 years before writing that book. He was doing research on that regard. And he went all over the world, visited many archaeological sites and everything. And like Prabhu was making a point, and he found that what history has been presented to us is highly Christianized. Just one point I wanted to add here, that Druttakarma Prabhu is one of my gurus. I was traveling with him for nearly a month. And lot of the research techniques, कैसे data निकालते हैं, study करते हैं, बहुत कुछ उन्होंने मुझे personally सिखाया है. So I ascribe a lot of my abilities to it. Yeah, he is a genius, and he ascribed all of that skills. His Grace Sutapa Prabhu, no Sutapa, Sadaput Prabhu, Sadaput, Prabhupada disciple, because he was working under him in his team as a proofreader and all that, and later on he went to become like this. So he was making a point that most of the history is hidden. To give you an example of how much history is hidden, if you look at the, I don't know now, the world map जो पहले chart आता था ना, उसमें बताया जाता था जितनी भी Christian countries हैं, they are enlarged on the map, and the other countries where it is non-Christian, they are shown smaller, but demographically the calculation could be different. Do you know how subtly the brainwashing is done like this? So there are many, many things like this. So he was making a point that at one place he was making a presentation in one conference, and halfway he was stopped because he was giving evidences which everyone could not digest, and they thought is व्यक्ति ने सारा खोल दिया हमारा, इसने सारा का सारा रहस्य बता दिया. He said his research work, Forbidden Archaeology, is slowly gonna make a dent. An academic world would not be so easily accepted. Just like he has got into this field, would not be so easily accepted by many because they're already left wing, and so many wings have come today. So they're there to present a particular ideology and particular understanding of the history. Just like there is a huge debate even about Buddha, Gautam Buddha, did his parents worship Lord Vishnu or not? According to all the evidences, his parents were worshippers of Lord Vishnu. They had a Vishnu temple in their house. Now they say, no, that's not possible. So therefore, going into history is a very debatable, very time-consuming, but still we need devotees who go back and do this research. And it can only happen when you're self-inspired, because you're not going to get too much support about it. Not even from devotee community, because ultimately they'll say, Shrama eva hi kevalam. In case if your conclusion doesn't come to serving Krishna and all that, but everything has its own utility, everything brings us. So really want to applaud Prabhu for dedicating his larger part of his youth, I would say, and doing this research work, which is not easy. He would have spent countless hours meeting many individuals. Sometimes many would have discouraged him. Probably some would have encouraged him. Those who would have encouraged him would be lesser, but discouraged party could be more. I'm just assuming, I don't know what would happen with him. But we wish all the best for this wonderful work that he has taken upon himself, and let many other wonderful books come up. Particularly, I see the great value of this. This is my perspective. Of course, it could have more audience, but I'm very much keen for this subject matter to go to our teens actually,
because they are the one who really get brainwashed. Among those of you who are sitting inside already, you have understood things. You have understood that everyone speaks of some history. Every speaker, Prabhupada talks about history. Everyone speaks about some history. So we understood that we have been brainwashed. So now we understand Mahabharata existed and all that. But the greatest challenge what our community faces is with our kids. They go out and they learn something else. They come back and they hear something else. They get really trouble. For them, books like this, Forbidden Archaeology was not something which you can recommend to kids because it was too heavy for them. And so certain stories are horrifying also, and like this. But this kind of books can really, really help teenagers, those who are going through a lot of changes in their personal life. And when they see this, they have something to offer back to those kids who are going to challenge them in the school or else in the college later on that your Mahabharata or your Ramayana is mythology. So, wish to thank Prabhu for taking his time coming, visiting Pune. And I think this is a great contribution towards our community kids. They're going to have some evidences now to present to public who otherwise going to argue against them. What do you think, kids? Sometimes you're challenged in school. ये महाभारत रामायण तुम तिलक लगा के क्यों घूमते हो कंठी माला क्यों पहनते हो तुम जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट करते हो सो नाउ यू हैव एविडेंसेस टू टेल देम दैट हाउ इनफैक्ट तुम्हारे पूर्वज भी चाहे तुम मुल्ले क्यों ना हो तुम्हारे पूर्वज भी राम और कृष्ण थे सो ऑल राइट वी थैंक प्रभु जी बाय वंस लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And our request, and those who are interested, they can take a book from Prabhu. And who's our librarian here who handles? Ashok is not here, na? Fine. Pranjal, take one book for the center. Okay? And parents can consider for the kids. बच्चों के संग खुद भी पढ़ लीजिएगा करके it'll be good. All right. And now we're going to go for a prasadam now. So in case if any one of you have questions, I'm pretty sure many would have many questions. I would give that freedom to Prabhu to decide how many questions to answer. That's between all of you, how many questions to take. All right. So before we go for questions, जो भी book लेना चाहते हैं, they can, because many times they want to take some signature and all that. Because आप Amazon से भी ले सकते हो. Many like to take from me personally. तो अभी आप लेना चाहते हो, you can free to take. And then once the books are given out, then we will take the questions personally. ठीक है? And we can start arranging the prasadam. Yes, we started in the prasadam.